Uh, a very good afternoon to all. I, Dr. Ruchi Tripathi, Assistant Advisor with NAM. I welcome all of you on behalf of National Assessment and Accreditation Council, NAC. We have from Eastern Region Committee, Professor Ami Kumar Rath, Advisor, Dr. B.S. Ponmudiraj, Advisor, Dr. Nilesh Pandey, Assistant Advisor, NAC, and myself. As you know, NAC is organizing a series of state-wise webinars for sensitizing the all higher education institutions across the country about the national education policy and bringing higher education forward for the NAC assessment and accreditation process. In this regard, a webinar focusing on multidisciplinary, interdisciplinary, academic bank of credit, skill development, appropriate integration of Indian language, outcome-based education, distance education, online education is organized for all the university for the affiliated college. We have with us Professor S.P. Singh sir, Vice Chancellor of the Mithila University and two more. And also another speaker, he will join in question answer session, Professor Manoj Kumar sir. In this regard, I request to Professor Ami Kumar Rath, sir, for the opening remarks. Sir, please come. Good afternoon. Thank you, Ruchi. Good afternoon, one and all present here. It's a program on national education policies. We'll focus more about interactions, your observations about national education policy. It's not only an awareness program, but implementation of this policy in the country is very important. We conduct such programs in different states. For yesterday, we have conducted in West Bengal. Yesterday in Odisha. Today, we are conducting in Bihar. The idea is all the stakeholders should be aware of there are different parameters. Ruchi spoke about multidisciplinary and holistic education, academic bank of credit. Like when there is a movement takes place from one institute to other institute by the students, how the bank of credit and mobility of students is very important. Multiple entry and multiple exit system, promotion of vocational education, Indian languages, arts and culture, including Indian knowledge system, outcome-based learning, online and digital education, ensuring equitable use of technology. Because after the presentation, I expect all of you to participate actively. You give your observations regarding these policies. It's not only an awareness program because 2020 a lot of awareness program is conducted in India, and most of them are aware of the document. But still, we will have more interactions, more observations, the strength and how it can be implemented. Yes. We'll see how this policy can be implemented in the country. Over to Dr. Ruchi. Thank you, sir, for your opening remarks. Let me introduce today's speaker, eminent speaker, Professor S.P. Singh, sir. Professor S.P. Singh has been the principal of National PG College for 26 years. He is also the former Vice Chancellor of the Lucknow University. Present Vice Chancellor, currently he is a 3 University Vice Chancellor, Mithila University, Aryabhatta University, Patliputra University. He also the Vice Chancellor of Maulana Azahur University also, but right now it's not there. So in this regard, sir has also visited more than 10 countries. Sir has many papers, symposium, conference. Sir has contributed many eminent academic exposure and many things. In this regard, I request, sir, I'm not going to speak a very small time. We have very limited time. You have many achievements. So in this regard, I just welcome, I request to SP Singh, sir. Sir, over to you for the presentation of NEP 2020. थैंक यू रुचि जी. मेरे पास कितना समय होगा अपनी बात कहने का? Ami sir, 1 hour. 1 hour, perfect 1 hour. Okay. It's a great opportunity to me to joining a online webinar
the issue related the NEP 2020. I must appreciate the efforts of the NAEC, Ministry of Education, and other officials, those who are connected with this program. सबको मेरा नमस्कार। रियली जिस इशू पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं वो इशू बनने के पहले भी बहुत चर्चा हुआ और बनने के बाद भी लगातार हम उसको कैसे लागू करें, कैसे उस पर काम करें, उसका डिटेल कैसे हम बनाएं, छोटे छोटे टुकड़ों में प्रोग्राम कैसे लागू करें, किस लेवल पर कौन सा प्रोग्राम लागू होगा, इन चीजों का हम मंथन कर रहे हैं आज की स्टेज में। बिहार सरकार ने इस 2020 NEP को लागू करने के लिए अपनी 4 कमेटियों को बनाया है, जो कमेटियां हायर एजुकेशन काउंसिल के अंतर्गत रन कर रही हैं। उनकी रिपोर्ट, उनका फॉर्मलाइजेशन वो फाइनल स्टेज पे चल रहा है। बेसिकली एजुकेशन पॉलिसी जो अब तक रही उसमें एक दूरी थी, एक स्टेज से दूसरे स्टेज की, उनका लिंक नहीं था, उनका कंसोलिडेशन नहीं था, उनका इंटीग्रेशन नहीं था। ये 2020 NEP में ये कंसोलिडेटेड है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है और एक परफेक्ट प्रोग्राम है विद परफेक्ट कंपोजिशन के साथ। 1968 में हायर एजुकेशन की कमीशन था, 86 में था, 92 में कुछ थोड़े मोड़े अमेंडमेंट उसमें हुए और 2020 परफेक्ट इंटीग्रेशन है शिक्षा की, उस भारतीय शिक्षा की व्यवस्था का जो प्राइमरी स्कूल से लगा करके और यूनिवर्सिटीज और फॉरेन यूनिवर्सिटीज जो इंडिया में स्टैब्लिश होंगी उनके साथ जुड़ने तक की एक यात्रा है। इस सिस्टम में जो एजुकेशन का फाउंडेशन है वो बेसिकली 5+3+3+4 एक कॉन्सेप्ट पे चला। जो पहले 10+2 की एजुकेशन थी वो अब 5+3+3+4 के कॉन्सेप्ट पर आई। जो टाइमिंग है पहले की एजुकेशन सिस्टम में 12th के और आज के एजुकेशन सिस्टम में, वो टाइमिंग 12 ईयर्स का ही है। 3 साल जो इसमें अलग से जुड़ रहे हैं वो 3 साल एक डिफरेंट मोटिव को लेकर के जुड़ रहे हैं। जो बच्चों को स्कूल आने से अरुचि होती थी, स्कूल नहीं जाते थे, डरते थे स्कूल जाने में, उस कॉन्सेप्ट को दूर करने के लिए 3 साल की एक एंट्री का पॉइंट इसमें दिया गया। हम सभी जानते हैं कि जो 3 साल का समय इसमें एडिशनल दिया गया, जो फाउंडेशन स्कूलिंग जिसको कहते हैं, इसका पहला चरण होगा। फाउंडेशन स्कूलिंग में 3+2 का एक कॉन्सेप्ट है जो 5 ईयर का कॉन्सेप्ट है, उसको अगेन डिवाइड किया गया, जिसमें 3 ईयर्स में केवल प्ले होगा, आर्ट होगा, पेंटिंग होगा, ड्राइंग होगा, कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट बच्चों के साथ होगा कि उन्हें स्कूल आने की एक आदत बन जाए और स्कूल उनका एक सुविधाजनक स्थान बन जाए जो घर से ज्यादा कंफर्टेबल हो, घर से ज्यादा फ्रीडम हो, और एक उनको कैसे अट्रैक्ट किया जाए, इस पूरी पॉलिसी को लेकर के 3 ईयर्स की पॉलिसी है। इस 3 ईयर्स की पॉलिसी में जो 2 और जुड़ता है, इसमें प्ले ग्रुप 3 साल का और 1 और 2 की एजुकेशन फाउंडेशन इस 5 साल में आती है। इस एजुकेशन की ब्यूटी ये है कि इसमें केवल गेम ही होना है 3 साल में, और 2 साल का फर्स्ट और सेकंड जो होगा उसमें कोई एग्जामिनेशन का बर्डन नहीं होगा। यानी इस लेवल पर एजुकेशन, 5 साल की एजुकेशन में कोई ड्रॉप आउट की जो गुंजाइश एग्जामिनेशन के नाम पे बनती थी या रिजल्ट के नाम पे बनती थी, ड्रॉप आउट 0 लेवल पर प्रिज्यूम किया जा सकता है कि ड्रॉप आउट परसेंटेज एकदम 0 पर हो जाएगा। जो दूसरी स्टेज बनती है नेक्स्ट 3 की, उस स्टेज में भी, नेक्स्ट 3 वाले स्टेज में भी यहाँ से एग्जामिनेशन, प्रिपरेटरी स्टेज है, यहाँ से एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा। यानी इसमें जो बच्चा पढ़ने आएगा वो 3rd, 4th और 5th को पढ़ेगा, और 3rd, 4th, 5th की प्रिपरेटरी एग्जाम्स होंगे। इसमें कोई एग्जाम जो होंगे वो होंगे पास करने के लिए, और यहाँ पर आने के बाद एक एक्टिविटी और स्टडी का एक स्कोप उनके साथ जुड़ता है, जिसमें स्कूल में वो एक्टिविटी करेंगे और स्टडी के साथ एक्टिविटी करेंगे, इसके साथ जुड़ता है। और एक मदर लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज के रूप में उन्हें पढ़नी पड़ेगी। यहाँ पर एक ऐसी बात, जो 3rd स्टेज की एजुकेशन है 3 साल की, नेक्स्ट +3,
5+3 जो नेक्स्ट 5+3 है वो 6th 7th और 8th की एजुकेशन होगी। इस एजुकेशन के जो ये मिडिल स्टेज एजुकेशन है इसमें इंडियन लैंग्वेजेस भी पढ़ाने की व्यवस्था है। जो पढ़ाना चाहे वो इसको पढ़ सकते हैं, उसकी व्यवस्था स्कूल कॉलेज में होगी। जो एक नई बात यहाँ से शुरू होने जा रही, इस स्टेज में एक कंप्यूटर नॉलेज भी देने की बात है, वो भी देना दिया, इसकी विशेषता में है। वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन का स्टार्ट भी यहाँ से होना है। जो मैथ्स की जनरल क्लास होंगी, जो साइंस की जनरल क्लास होंगी, जो आर्ट्स की जनरल क्लास होंगी, ये सारी क्लासेज यहाँ से होने की बात है। ये एक मिडिल स्टेज की एजुकेशन व्यवस्था है जो 8th तक की एजुकेशन को कैरी करके ले आएगा। इसके बाद जो 4th स्टेज पर एजुकेशन है वो लास्ट 4 है, तो 5+3+3 नेक्स्ट 4। नेक्स्ट 4 सेकेंडरी एजुकेशन है जिसमें 9th 10th 11th और 12th की एजुकेशन कैरी ऑन होगी। इस एजुकेशन की खास बात ये होगी इसमें लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज एक ऑप्शन होगा और उसके साथ ये सेमेस्टर सिस्टम का एग्जाम होगा। 9th 10th 11th 12th का सेमेस्टर सिस्टम का एग्जाम होगा। इस तरह की ये पॉलिसी डिफाइन की गई है जिसमें कोई स्ट्रीम नहीं होगी, साइंस आर्ट कॉमर्स की कोई स्ट्रीम नहीं होगी, स्ट्रीमलेस एजुकेशन होगी, सेमेस्टर सिस्टम में होगी। मल्टीपल सब्जेक्ट होंगे, जिनका जो चॉइस लेना होगा वो चॉइस ले सकते हैं। और एक क्रिटिकल थिंकिंग जो बड़ी इंपॉर्टेंट इशू यहाँ से जनरेट होगा, एक क्रिटिकल थिंकिंग का इशू यहाँ से जनरेट होगा। ये बच्चों के पास ये जाने की बात है। और फॉरेन लैंग्वेज भी इसी में एक हिस्सा है, जो फॉरेन लैंग्वेज भी यहाँ पर पढ़ाई के लिए है। अब बेसिकली जो हायर एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है, ये जो मिडिल लेवल का, प्रिपरेटरी लेवल का, फाउंडेशन लेवल का एजुकेशन 5+3+3+4 था। उसके बाद जो हायर एजुकेशन जिसके कंसर्न के लिए नैक और हम सब यहाँ हैं, उस कंसर्न में जो बड़ी बात आएगी, इस सारी डिसिप्लिन खत्म करने की बात है, जिसमें बीए, बीएससी, बीकॉम इस तरह का कोई डिग्री फॉर्मेट नहीं बनेगा। इसका इंटायर स्ट्रक्चरल चेंज की, एक प्रोसीजरल चेंज की बात यहाँ पर है। इसमें एक बड़ी बात और इम्पॉर्टेंट बात ये होगी कि जो एंट्री होगी वो किसी लेवल पर एंट्री हो सकती है और एग्जिट भी हो सकता है कि किसी लेवल पर अगर किसी कोई दिक्कत है तो छोड़ के जा सकता है। यानी अब तक का जो फॉर्मेटिंग था हायर एजुकेशन का, वो 3 साल के ग्रेजुएशन में वो अगर एक बार एंट्री लेता था तो हर साल उसे एक मार्कशीट मिलती थी, फिर नेक्स्ट उसमें जाता था, सेकेंड में जाता था, फिर फाइनल ईयर में जाता था। और इनमें से किसी में वो ड्रॉप कर गया तो फिर इंटायर ग्रेजुएशन उसका जो है 2 साल के बाद, अगर 5 साल समय लगा तो उसे फिर से नए सिरे से स्टार्ट करना होता था। ये प्रोसेस यहाँ से क्रेडिट स्कोर के साथ, क्रेडिट बैंक की फैसिलिटी के साथ और क्रेडिट ट्रांसफर होने की फैसिलिटी के साथ एक इंस्टीट्यूशन दूसरे इंस्टीट्यूशन में एक मोबिलिटी परफेक्टली उसके हिस्से में आ जाएगी। यहाँ पर फर्स्ट ईयर का कोर्स कंटेंट एक होगा, सेकेंड ईयर का कोर्स कंटेंट सफिशिएंट लेवल पर एक होगा और थर्ड ईयर का कोर्स कंटेंट एक होगा, फोर्थ ईयर का कोर्स कंटेंट अलग होगा। यानी 1, 2 और थर्ड ईयर्स के जो सिलेबस होंगे वो अपने आप में परफेक्ट होने की बात है कि अगर हम कोई पढ़ाई करने जा रहे हैं तो एक पहले साल पर अगर एक सर्टिफिकेट अवार्ड होगा तो अपने आप में कंपैक्ट होना चाहिए, जितना हमने पढ़ा है उसके सारी पहलुओं को पढ़ा है और उसके बाद एक सर्टिफिकेट हमें मिल रहा है। जो 2 साल की एजुकेशन पूरा करेंगे उन्हें डिप्लोमा देने का प्रोविजन है कि उनको डिप्लोमा दिया जाएगा, लेकिन वो 2 साल के कोर्स को पूरा करेंगे जब, तो एक सेल्फ रिलायंस, सेल्फ सफिशिएंट कोर्स प्रिपेयर होना चाहिए उसके लिए। सपोज कीजिए इकोनॉमिक्स का कोर्स कोई है तो 1 में वो पेपर पढ़ाए जाने चाहिए जो पेपर परफेक्टली एक इकोनॉमिक्स का बेसिक फाउंडेशन दे सके, जिससे 1 ईयर इकोनॉमिक्स का एक सर्टिफिकेट उसके पास चला जाए। सिमिलरली अगर सेकेंड ईयर में आया तो डिप्लोमा लेवल तक का एक कोर्स कंटेंट इकोनॉमिक्स का प्रिपेयर होना चाहिए, उस प्रिपरेशन के साथ वो निकल करके चला जाएगा। और थर्ड ईयर के कोर्स में इंटायर परफेक्ट कंप्लीशन कोर्स का होगा, जिसमें डिग्री अवार्ड उसको की जाएगी। इन तीनों सालों का, तीनों वर्षों का क्रेडिट स्कोर उसका बैंक, क्रेडिट बैंक बनता जाएगा। वो जब भी कभी छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है, उस क्रेडिट बैंक के सहारे वो अगले क्लास में दोबारा एडमिशन ले सकता है और फिर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकता है। यानी मोबिलिटी एकदम परफेक्टली एक इक्वल लेवल पर है, कहीं से जा सकता है, कहीं से आ सकता है, ये परेशानी उसको नहीं होगी। एक अगर 4 साल का डिग्री कोर्स कोई कर रहा है, फॉर्मेट ही चेंज है, परफेक्टली फॉर्मेट की चेंजिंग है। अगर 4 साल का डिग्री कोर्स होगा
तो जो 4th ईयर का डिग्री कोर्स होगा वो मोस्टली रिसर्च बेस्ड होगा। तो यानी अब 4 साल के डिग्री कोर्स करने के बाद जो पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन है वो 1 ईयर की होगी, और 3 साल का करने के बाद जो पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन है वो 2 ईयर्स। यानी इंटायर ईयर जो कंपैक्ट इसमें आ रहा था उस फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं है, लेकिन विद इन ए ईयर फॉर्मेटिंग में परफेक्ट चेंजेज है, एब्सोल्यूट चेंज है, जिसमें कहीं से भी इसकी पुरानी सिस्टम से इसकी तुलना नहीं की जा सकती। क्योंकि जब क्रेडिट ट्रांसफर में जाएंगे, आवर ट्रांसफर में जाएंगे, क्रेडिट बैंक बनेगा, मोबिलिटी बनेगा, और इसमें सब्जेक्ट का बंदिश भी नहीं होने की बात है। यानी बीए, बीएससी, बीकॉम की डिग्री नहीं होगी, केवल ग्रेजुएशन की डिग्री होगी। वो कॉम्बिनेशन साइंस के खत्म हो जाएंगे, दूसरे कॉम्बिनेशन खत्म हो जाएंगे, ये कॉम्बिनेशन नहीं रहेंगे उसके साथ। तो ये जो फॉर्मेट है 4 साल का, वो रिसर्च के लिए है 4थे साल का फॉर्मेट, और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट जब बात आएगी तो वो 1 ईयर और 2 ईयर का अकॉर्डिंगली उनके कोर्स के साथ तय होगा। यानी एक बड़ा बेनिफिट स्टूडेंट के साथ जो जा रहा है इस पूरे सिस्टम में, वो क्रेडिट ट्रांसफर का है, परफेक्ट ओपन चॉइस उसके पास है। अब ये कॉम्बिनेशन बनाने के लिए यूनिवर्सिटीज में इंटरडिसिप्लिनरी, इंट्राडिसिप्लिनरी, इंटर सब्जेक्ट, इंट्रा सब्जेक्ट, इस तरह के कॉम्बिनेशन कोर्स कंडक्ट इसका बनेगा, और उसके आधार पर ये काम होगा। बहुत सारी संस्थाओं ने इसको बना लिया है, बहुत सारी संस्थाएं बनाने के उपक्रम में हैं। बिहार में अभी ये प्राइमरी स्टेज पर काम चल रहा है, इस पर अभी आगे मूव नहीं कर पाया है, प्राइमरी स्टेज पर इसमें काम चल रहा है। सेमेस्टर सिस्टम तो लागू है बिहार में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में, तो क्रेडिट भी लागू है वहाँ पर, चॉइस भी वहाँ लागू है पीजी पर। तो पीजी के साथ एक कॉम्बिनेशन मल्टीपल उसका चल रहा है, सीबीसीएस का चल रहा है। अब प्रश्न ये होता है कि इसके बाद जो रिसर्च की डिग्री है, उस रिसर्च का एक फॉर्मेट है। एमफिल बीच में जो आता था, एमफिल को इंटायरली खत्म कर दिया गया है, एमफिल अब नहीं रहेगा, उसकी जगह पीएचडी, सीधे पोस्ट ग्रेजुएट के बाद पीएचडी आ जाएगी, इस कार्यक्रम को इसमें लागू किया जाएगा। सवाल खाली ये होता है कि इतना सारा जो इसमें किया गया है परिवर्तन, उसका एडवांटेज कितना है? बेसिकली जो बजटरी टर्म में एडवांटेज है वो तो 6% जीडीपी का रखा गया है। इस लेवल पर कब आएगा, थोड़ा समय लगेगा। यानी एक मैसिव इन्वेस्टमेंट इसमें होना है एजुकेशन सिस्टम में। और इसमें जो स्कूल की फीस है, दूसरी बात जब आएगी तो स्कूल की फीस पर भी कंट्रोल बनेगा। कोई इंस्टीट्यूशन अपने आप कोई फीस तय नहीं कर सकता है, वो रेगुलेटरी बॉडी के द्वारा उसकी फीस तय होगी, फिर वो काम। जो प्रैक्टिकल और वोकेशनल नॉलेज की बात इसमें आई है, बेसिकली अभी तक जब हम इसकी फॉर्मेटिंग करते थे या बीसीए पढ़ाते थे या बीबीए पढ़ाते थे, कोई कोर्स पढ़ाते थे, तो ऑलमोस्ट 30% उसका प्रैक्टिकल रखते थे, 70% थ्योरी मार्क्स के साथ उसको जोड़ते थे। लेकिन इस वोकेशनल कोर्सेज में इंपॉर्टेंस वोकेशनल को ज्यादा दे करके, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को ज्यादा दे करके इसको स्विच ओवर करने के बाद है कि थ्योरी कंटेंट 30% हो और 70% जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो उसका वोकेशनल कंटेंट हो, उस कंटेंट के साथ हम आगे फ्लोर करें। ये एक कॉन्सेप्ट यूनिवर्सिटीज को कहीं ना कहीं दिमाग में रखना होगा। अब जैसे रिजल्ट जो निकलने का बात था, रिजल्ट जो अब तक मार्क्स पे निकलता था, जो हमने एग्जाम में लिखा उस मार्क्स में जो हमें मार्क्स आए उस पर हमारा परसेंटेज तय हो जाएगा, उस पर हमें एक ग्रेड अवार्ड हो जाएगा। जो सिस्टम की चाहत है, वो चाहत इसका 360 डिग्री पर इवेल्युएशन है स्टूडेंट। यानी मार्क्स का एक हिस्सा होगा, लेकिन उसके साथियों से जो उसके रिश्ते हैं उसका भी एक हिस्सा होगा, जो उसने काम किए हैं उसका भी एक, सेल्फ का भी एक एस्पेक्ट होगा, फ्रेंड्स का भी एक एस्पेक्ट होगा, और टीचर तो उसका इवेल्युएशन कर ही रहा है, उसका भी एक एस्पेक्ट होगा। तो ऑल राउंड इवेल्युएशन उसका 360 डिग्री पर होगा, अपने पीयर ग्रुप से भी, अपना सेल्फ भी, मार्क्स से भी, टीचर से भी, एक ओपन होगा। सिमिलरली जो एडवांटेज में है, जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज का काम है, अब तक ये कोलैबोरेशन में फॉरेन यूनिवर्सिटीज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के साथ थी, उनका एक्सचेंज प्रोग्राम होता था, उनके कुछ पेपर कंडक्ट, कुछ कोर्स कंडक्शन भी मैच करके, मिक्स मैच करके हो जाते थे। यहाँ पर फ्रीडम ये है कि टॉप 100 यूनिवर्सिटीज जो वर्ल्ड की होंगी, वो कोई भी अपना कैंपस इंडिया में ले सकती हैं, इंडिया में आ सकती हैं। ये एक ब्यूटीफुल एस्पेक्ट आया कंपटीशन के लिए कि अगर टॉप 100 यूनिवर्सिटी फॉरेन की आती हैं तो उनसे कैसे हम सीखेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, ये एक बात इसके साथ इसमें जुड़ी। और तीसरी बात इसके साथ बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अब तक एक ही डिपार्टमेंट सारी चीजों को कंट्रोल करता था, लेकिन अब ये कॉर्पोरेट जैसा कि एग्जाम का एक अलग डिपार्टमेंट होगा,
जो टीचिंग का परफॉर्मेंस देखेगा उसका अलग डिपार्टमेंट होगा, जो सर्विस रूल सर्विस कंडीशन देखेगा उसका एक अलग डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी सिस्टम में होगा, एक अलग नॉमेनक्लेचर के साथ होगा। और इसके साथ जो रेगुलर चेकिंग का डिपार्टमेंट होगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो एक अलग। लेकिन इसी के साथ रिसर्च और जो डेवलपमेंट है उस पर भी एक बड़ा फंड इस पर जाएगा। एक बड़ी बात इसके साथ ये जुड़ रही है कि टीचर्स ट्रेनिंग कंपलसरी होगी और 4 साल का एक टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। उस टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ बहुत सारी चीजें इसके साथ जुड़ेंगी। तो बेसिकली एक कंप्रहेंसिव प्रोग्राम, एक कंपोजिट प्रोग्राम के साथ ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जिनमें चीजें अगर रेगुलेट हो जाएंगी, एग्जीक्यूट हो जाएंगी, सिस्टम बहुत आसानी से हो जाएंगी, तो मैं समझता हूं कि एक बड़ा बदलाव पूरे हिंदुस्तान की एजुकेशन पॉलिसी में आ रहा है। आने वाला समय इस बदलाव के साथ, जिनमें इन सारी चीजों को जो स्टूडेंट के इंटरेस्ट में भी है, इंस्टीट्यूशन के भी इंटरेस्ट में है, टीचर्स के भी इंटरेस्ट में है, सबकी इंटरेस्ट में, और इंटायर कंट्री को बेनिफिट मिलेगा जो आउटकम इसका मिलेगा। जो इसके साथ अगर हम ऐसे देखना चाहें, इसके 4-5 बड़े सैलिएंट फीचर्स क्या बन सकते हैं इस एजुकेशन सिस्टम के न्यू चेंजेस के, तो नंबर 1 पर ये जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज का आना यहाँ पर होगा, 100 टॉप यूनिवर्सिटीज का, वो अब तक कोलैबोरेशन या जो हम डिस्टेंस मोड में करते थे या सिलेबस एक्सचेंज करते थे वो छूट जाएगा। उसके साथ उनका ऑफ कैंपस यहाँ बनेगा, एक ओपन कंपटीशन हायर एजुकेशन के सेक्टर में क्रिएट होगा कि उससे सीखने की प्रवृत्ति एक बढ़ेगी। दूसरी बड़ी बात, जो फॉर्मेट शिफ्ट किया गया इसका एजुकेशन का कि सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, रिसर्च, पीएचडी, ये फॉर्मेट शिफ्टिंग है इसकी। और कोर फॉर्मेट शिफ्टिंग जो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात है कि उसके साथ ये स्टार्ट होगा। अगली बात इंपॉर्टेंट होगी कि इसके एक सिंगल रेगुलेटरी बॉडी की बात हो रही है कि उसी से फंडिंग भी होगी, वो कंट्रोल भी करेगा, वो रेगुलेट भी करेगा, वो स्टैंडर्ड सेटिंग भी करेगा कि स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटीज का क्या हो, इंस्टीट्यूशन का स्टैंडर्ड क्या हो, उसकी भी सेटिंग करेगा। और इसी में रिसर्च को आगे ले जाने के लिए एक बड़ी बात एनआरएफ के माध्यम से भी आ रही है कि जो नेशनल रिसर्च फंडिंग है वो एक बजट, वो एक कोर्स इसका बनेगा। उस कोर्स के साथ जो रिसर्च प्रमोशंस हैं वो क्रिएट होंगे, उसके एवेन्यूज मिलेंगे और उसमें डेवलपमेंट होगी। एक और बड़ी बात, जैसे हम यूनिवर्सिटी सिस्टम को रन करते हैं तो टीचिंग को कैसे हम शार्पन करें, कैसे इंप्रूव करें, ईयर ला ईयर 5% इंप्रूवमेंट के रेट से या 10% इंप्रूवमेंट के रेट से हम अपनी टीचिंग में क्या इनोवेशन ला रहे हैं, उसको कैसे इंप्रूव कर रहे हैं, ये ओवरऑल सबके लिए नहीं था। हम में से कुछ लोग ऐसे होते थे कि जो अपनी टीचिंग को हर साल एक नए मॉडल पर लाते थे, उसमें एक इनोवेटिव आइडियाज लाते थे, अपनी टीचिंग पेडागोजी को इंप्रूव करते थे और अपने आप को सक्सेस रेट 5% 10% के हिसाब से इंक्रीज करते थे। लेकिन भीड़ नहीं करती थी, बहुत थोड़े टीचर्स, एक लिटिल परसेंटेज उनका करता था इन कामों को, बंद नहीं होता था, ये काम चलते रहते थे। अब इसके लिए एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक सेल बनेगा जो इनोवेटिव आइडियाज के साथ उस पर रिसर्च करेगा, उसको आगे लाएगा, ओपन होगा टू ऑल के सजेशन उसके साथ आए, उस सजेशन पर आगे काम। ये किसी भी यूनिवर्सिटी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सेल नहीं होता था। रिसर्च हुआ तो पीएचडी टास्क के लिए हुआ, लेकिन यूनिवर्सिटी सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम, एकेडमिक सिस्टम, एग्जामिनेशन सिस्टम कैसे हम इम्प्रूव करें, कैसे उस पर और आगे हम आगे बढ़ें, ये आइडियाज कभी इनोवेट नहीं होते थे, कुछ स्पेसिफिक सेल इसके लिए नहीं होता। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सेल जैसे कॉर्पोरेट में होता है, मार्केटिंग के लिए होता है, सारी चीजों के लिए होता, उस एजुकेशन सिस्टम में भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सेल इंट्रोड्यूस होना है। उस सेल के साथ बहुत साफ बात होगी कि अब वो एक टीचर की शार्पनेस नहीं होगी, बल्कि इंटायर सिस्टम में जितने भी हमारे साथी हैं उसके साथ वो एक योजना होगी, उस योजना को लागू करना, उस पर हम सभी काम करना। तो एक का इनोवेशन इंटायर कंट्री का इनोवेशन बनने की तैयारी में है, 2 का इनोवेशन इंटायर इंस्टीट्यूट के इनोवेशन बनने की तैयारी में है। उस दिशा में ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी काम कर रही है। एक और बात जो कोविड के काल में सीखी गई, बल्कि सीखी गई क्या आप कहें, कंपेल हुए हम सभी कि उस फॉर्मेट पे काम करें, वो जो ऑनलाइन क्लासेज हैं,
जो ई कंटेंट है, ई प्लेटफॉर्म पे टीचिंग लर्निंग है, उसके रेशियो को, उसके शेयर को इंक्रीज किया जाए डे बाई डे। ये कॉन्सेप्ट चलना पड़ेगा, ये बड़ा रिसर्च का कॉन्सेप्ट होगा और इसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर का सेटअप भी करना होगा, यूनिवर्सिटी में भी करना होगा, कॉलेजेस को भी करना होगा, सबको लिंकअप करना होगा, जोड़ना होगा, जिससे ये प्रोग्राम आगे तक पहुंच जाए उनके, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का फायदा मिल सके उनको। इसलिए ऑनलाइन कंटेंट के लिए, ई कंटेंट के लिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए, ई प्लेटफॉर्म के लिए ये सारी चीजें एक नई एक्सरसाइज के रूप में निकल करके आने वाली है। अब ये मजबूरी के नाते आई, कोविड के नाते आई। कोविड में तो मोस्टली सारे इंस्टीट्यूशंस ने ऑनलाइन प्रोग्राम को स्वीकार किया और उसको रन किया, जिससे स्टूडेंट्स को फायदा मिला। यहाँ तक कि स्कूल लेवल की भी टीचिंग में ऑनलाइन टीचिंग, ई टीचिंग आ गई, उसको भी लोगों ने लिया। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा जो आगे डेवलप करना होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ। और इसके लिए इसमें एक नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजिकल फोरम की बात भी इसके साथ है कि वो फोरम बनेगा, जो फोरम इन चीजों को आगे ले जाने की दिशा में काम करेगा और ये शिक्षा का जो बदलाव है वो इसके साथ आगे चले। मैं समझता हूं कि जो एक फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट कितना बदलाव के साथ आगे आएगा, ये डिपेंड करता है कितनी शिद्दत के साथ, कितनी तत्परता के साथ, कितनी डिसिप्लिन वे में हम इसको लागू करना चाहते हैं। यानी सारी जिम्मेदारी इसको लागू करने की अगर बनती है तो हमारे जैसे कुलपति की बनती है और हमारे साथियों की बनती है, जो हमारे डीन्स हैं, जो हमारे प्रोफेसर साथी हैं, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं, जो नीचे लेवल तक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हमारे, उनकी बनती है। मेजर कंपोजिशन जो इसमें आ रहा है वो सिलेबस का आ रहा है, टीचिंग पैटर्न का आ रहा है, एग्जामिनेशन पैटर्न का आ रहा है, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन का आ रहा है। ये सारे पैटर्न जो आ रहे हैं, इसके लिए जो एक तैयारी करने की बात है, क्योंकि बिना रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल के या एग्जीक्यूटिव सेल के नाते बनाए ये लागू आसानी से नहीं हो पाएगा, क्योंकि तमाम छोटी छोटी इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम होंगी। मैक्रो लेवल की प्रॉब्लम अलग एग्जिस्ट करेंगी और माइक्रो लेवल की प्रॉब्लम्स इंस्टीट्यूशन पर होंगी। और इंस्टीट्यूशन के हो सकता है 30 डिपार्टमेंट हो, तो 30 में से 4 अच्छा कर ले जा रहा हूँ और 2 हो सकता है स्ट्रगल कर रहे हो, बाकी मिडिल में चल रहे। तो ये जो फोकस लेना होगा, इसको मॉनिटर करने का, इसे रेगुलेट करने का, इसके सिस्टम को लेने का, ये सारा का सारा दायित्व अगर किसी का बनता है तो एजुकेशन सिस्टम में हमारे साथी और हमारा बनता है। हम अगर जुड़ रहे हैं इसके साथ, ये पूरी बदलाव की जिम्मेदारी हमारी बनती है, हमारे लेवल पर बनती है। जो सिलेबस का कंटेंट है वो भी हमारा हिस्सा, यानी इस पूरे सिस्टम में जो चीजें हैं लगभग 70% तो काम हमारे हिस्से में है कि हम ही उस बदलाव को लाएंगे और हम ही उस पर काम करेंगे। अब ये हो सकता है कि एक बारगी जो परिवर्तन होता है वो हम कर पाते हैं या नहीं कर पाते। इसलिए हर इंस्टीट्यूशन को और स्टेट को इस प्लान को फेजेज में बांट करके करने का एक परंपरा है। इसको फेजेज में जब हम बांटेंगे तो कौन सा प्रोग्राम हम ए लेवल पे लेंगे, कौन सा बी लेवल पे लेंगे, कौन सी लेवल पे लेंगे, किसमें कितनी एनर्जी लगनी है, तो जाहिर सी बात है अगर किसी काम को करना होता है तो जो लेस एनर्जी का हिस्सा होता है उसको हम सबसे पहले करते हैं, उसके बाद उसके ज्यादा एनर्जी मुझे लगती है उसको कंप्लीट करते हैं, फिर उसकी बात करते हैं। यहाँ तक कि छोटा सा काम हम करते हैं कि जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं उसकी जब हम स्कीम बनाते हैं एग्जामिनेशन की, तो कोशिश ये करते हैं कि इसकी शुरुआत में वो सब्जेक्ट रखे जाए जिनकी स्टूडेंट नंबर्स कम हो, स्ट्रेंथ कम, वो सब्जेक्ट रख करके हम एग्जाम की स्कीम को बनाते हैं। और फिर जिनकी संख्या बढ़ती जाती है, मिडिल में रखें या एंड में रखें, हम वो बात आगे करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने के लिए जो थोड़े से स्टूडेंट वाला सब्जेक्ट है उसको हम पहले लेते हैं। ये सोचने समझ, या जैसे सिमिलरली टीचिंग की बात है तो मैं समझता हूँ कि जो बेस्ट प्रोफेसर हमारा साथी होता है वो एंट्री लेवल के क्लास को लेने में ज्यादा रुचि रखता है। बाकी रिसर्च तो उसका हिस्सा है, लेकिन वो कोशिश करता है कि अट्रैक्ट करने के लिए स्टूडेंट को, सब्जेक्ट की ग्रेविटी देने के लिए, सब्जेक्ट का आउटकम देने के लिए जो बेहतरीन प्रोफेसर हमारा है वो पहले जाता है वेलकम क्लास में और वहीं से उस क्लास की शुरुआत करता है। इसको पैटर्न बदल देंगे तो सबसे डिफिकल्ट प्रोफेसर को अगर आपने 1 में भेज दिया तो सब्जेक्ट के प्रति एक रुचि जो होने की बात है वो डिपार्टमेंट में नहीं। तो जैसे हम वहां पर इस काम को छोटे तरीके से करते हैं, इस बदलाव के साथ करते हैं, वैसे इसको भी इतने सारे बदलावों के साथ जोड़ करके हमको करना होगा, क्योंकि ये बदलाव एक दिन के बदलाव नहीं है।
इंटायर स्ट्रक्चर को चेंज करने का काम अगर हम कर रहे हैं तो एक मेजर शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। ये जो रोल शिफ्टिंग है, उस रोल शिफ्ट को शिफ्ट करना पड़ेगा। अभी तक हम आए जैसे आए गए, कहीं बायोमेट्रिक पे अटेंडेंस लगा, कहीं वो भी नहीं होगी, जो भी काम किया। लेकिन एक रूटीन फॉलो करते हुए एक 50 साल से हम चले आ रहे थे एजुकेशन का, और बल्कि और पहले से चले आ रहे थे कि क्लास में जाना, टाइम से आना, और जो सिलेबस कंटेंट है उसको एक्सप्लेन कर देना, चले आना वापस, एक रूटीन फॉलो करना। इस पूरे सिस्टम में वो रूटीन नहीं चलेगा। इसलिए ये बॉडी का स्पेशलाइजेशन नहीं है। जैसे हम बीमार होते हैं तो अगर आंख की बीमारी है तो आई सर्जन के पास जाते हैं, जनरल मेडिसिन के लिए जाते हैं, सर्जरी के लिए कहीं जाते हैं, न्यूरो की प्रॉब्लम के लिए कहीं जाते हैं, नेफ्रोलॉजी के लिए कहीं जाते हैं। ये कहीं ना जा करके, क्योंकि हर एजुकेशन का एक स्टेप दूसरे स्टेप से कनेक्टेड है। अगर प्रिपरेटरी क्लास बेहतर नहीं होगी तो आगे मिडिल क्लास भी बेहतर नहीं होगी, और मिडिल बेहतर नहीं होगी तो उसके आगे जो हमने +4 का कोर्स किया वो भी बेहतर नहीं होगी। उसकी बेहतरी के लिए हमको जाना पड़ेगा, एक साथ जुड़ना पड़ेगा, सिस्टम को, पिछले सिस्टम को समझ करके आगे आना पड़ेगा। एक सिमिलरली जैसे रिले रेस होता है, उस कॉन्सेप्ट के साथ इस एजुकेशन को लागू, एक बैटल लेकर के अगर प्रिपरेटरी क्लास से लोग आए, फाउंडेशन कोर्स से आगे आए, तो प्रिपरेटरी में भी उनको आना पड़ेगा, मिडिल में भी उनको आना पड़ेगा, और सेकेंडरी लेवल पर भी आना। इन सारे लेवल्स पर जोड़ने के बाद जो कनेक्टिविटी होगी, जो इसका स्ट्रेंथन बनेगा, स्ट्रेंथनिंग होगी, वही एजुकेशन सिस्टम को आगे कैरी फॉरवर्ड करेगी। अभी हम जैसे डिग्री लेवल पर सब्जेक्ट को चेंज कर रहे हैं, तो हमारे पास अभी वो सब्जेक्ट चेंज वाला मिडिल ग्रुप नहीं आया, यानी 5+3+3 का 4 वाला ग्रुप हमारे पास नहीं आया। तो इंटायर एजुकेशन सिस्टम तब चेंज होने में और आसान होगा जब 5 से 3 और +3 और +4 आकर के फिर हमारे साथ +4 में जुड़ेगा। वो सिस्टम जब हम लेके आएंगे, तो अभी क्या है कि जिस माइंडसेट के साथ हमने स्टूडेंट को 12th पास कराया, उसी माइंडसेट के साथ वो ग्रेजुएशन में आ गया। वो ब्रांचेज के साथ आया है, डिसिप्लिन के साथ आया, फैकल्टी के साथ आया है, यहां आकर के फिर उसी माइंडसेट के साथ। और रियल में जब आता, हम उसको मल्टी डिसिप्लिनरी का कोई फाउंडेशन कोर्स देते हैं या पेपर ऑफ बास्केट देते हैं, तो उनमें से किसको चुनना है, किसे नहीं चुनना है, ये एक कठिन काम उसके लिए अभी बन रहा है। अभी वो प्लेजर उसे नहीं फील हो रहा सब्जेक्ट को लेने में, जो प्लेजर नीचे से एजुकेशन सिस्टम आता तो फील होता उसको। लेकिन जब इसी सिस्टम में हमें काम करना है, एक माइंडसेट के साथ काम करना है, क्योंकि ये बदलाव जो देगा हिंदुस्तान की एजुकेशन को, भारत की शिक्षा को, ये 12 और 4 यानी एक पूरी सीक्वेंसिंग इसकी जब आएगी 16 साल की, उस सीक्वेंसिंग में ये अच्छा फल दे पाएगा। 16 साल रन करने के बाद इस प्रोग्राम का जब रिजल्ट आएगा तो एक डिफरेंट रिजल्ट होगा। उससे जो बच्चा पढ़ करके आएगा वो उतना इक्विप्ड होगा जितना एजुकेशन के बाद ट्रेनिंग लेकर के चीजों को करके 10 साल काम करके इक्विप्ड होगा। तो एक इमेजिनेशन लीजिए इस बात का कि जो 1 से लगा करके, प्रिपरेटरी क्लास से लगा करके मिडिल क्लास और सेकेंडरी क्लास तक आकर के पूरी यात्रा करके वो आ रहा है, और एग्जामिनेशन का फियर भी खत्म किया गया, और एग्जामिनेशन है भी, सेमेस्टर कोर्स किया तो एग्जामिनेशन का फियर आधा हो गया। इवेल्युएशन के पैटर्न को हमने बदल दिया कि उसका मार्क्स भी होगा, सेल्फ असेसमेंट भी होगा, पीयर असेसमेंट भी होगा, टीचर का भी असेसमेंट होगा। तो उसके एग्जामिनेशन के इस पूरे पैटर्न को बदलने के बाद रिजल्ट को जब हम बनाएंगे, काउंट करेंगे, तो एक अलग तरीके का, एक मानवीय गुणों के साथ वो बच्चा इंटर करेगा हायर, क्योंकि इसके जो इवेल्युएशन पैटर्न है, इससे जब वो आएगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी रिलेशनशिप सीख जाएगा, जो कैसे रहा जाता है ग्रुप में उसको भी वो सीखेगा, टीचर से इवेल्युएट होगा तो रिस्पेक्ट भी उसके पास होगी, डिसिप्लिन भी होगा, अपना सेल्फ इवोल्यूशन वो खुद भी करेगा, उसका भी एक मार्क होगा। ये नहीं जैसे आज की तारीख में जो इवोल्यूशन होता है उसमें कॉपी में जो लिखा उतने हो गया। तो एक मौका उस विद्यार्थी को मिलेगा अपने आप को प्रेजेंट करने का कि कितना नंबर लाए, वो अपने आप को समझ रहा, वो भी अपना स्कोर अपने आप देगा। तो ये जो पैटर्न बदला रहा है, पूरी एग्जामिनेशन का बदला, एडमिशन का बदला, पढ़ाई का बदला, इस पैटर्न के बदलने के बाद जो एजुकेशन का आउटकम आएगा, जिस आउटकम के लिए सारी एक्सरसाइजेज हर स्टेज पे हम करते रहे थे,
वो आउटकम एक डिफरेंट, एक इस लेवल का एजुकेशन का पॉलिसी बनेगा हमारा कि जो स्टूडेंट हमारा होगा वो कंप्लीटली एक अलग सेट में होगा, एक अलग सिस्टम के एजुकेशन में होगा। ये एक बेहतरीन एजुकेशन पॉलिसी, इंटीग्रेटेड कंपोजिट पॉलिसी भारत सरकार की है और बड़ी शिद्दत के साथ इसे हम सब लागू करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं कि जैसे ही इसकी योजना बन करके स्टेज वाइज जाती जाएगी, वैसे बिहार स्टेट भी इसको लागू करने की तैयारी में है पूरी तरह से। अब ये चीज़ें लागू करने के लिए जो रीजनल लेवल पर, लोकल लेवल पर जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स अब इसकी खत्म होंगी, तभी ये लागू किया जा सकता है। एक फियर निकालने की बात है। कभी जो यूनिवर्सिटीज हैं या जो फैकल्टीज हैं वो एक फियर में है कि हम इसको लागू करेंगे तो कितनी दिक्कतें आएंगी, कितनी कठिनाई आएंगी। ये यूनिवर्सिटी लेवल पर इसकी एक एक्सरसाइज और गवर्नमेंट लेवल पर भी इसकी एक्सरसाइज जारी है, सब जगह जारी है जहाँ जहाँ लागू। मोस्टली ज्यादातर यूनिवर्सिटी का तो सिलेबस सेमेस्टर में था, कुछ एक यूनिवर्सिटी थी जिनका सिलेबस सेमेस्टर में नहीं था। मैंने जब लखनऊ यूनिवर्सिटी को चार्ज में लिया तो उसका पोस्ट ग्रेजुएट सेमेस्टर में था, क्रेडिट बेस्ड था, लेकिन अंडर ग्रेजुएट उसका क्रेडिट बेस्ड चॉइस बेस्ड में नहीं था। उसके लिए कितनी दिक्कत हुई, क्योंकि फॉर्मेट आपको चेंज करना पड़ा। जब एक योजना मैंने बनाई, सिलेबस को मैंने चेंज किया, मीटिंग की, लोगों को प्रेरित किया, उनके सवालों को लिया, उसका उत्तर दिया, तो जा करके 180 कॉलेजेस जो लखनऊ यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे, उन 180 कॉलेजेस को हमने सेमेस्टर में कन्वर्ट किया। अब एक बार का एग्जाम 180 कॉलेज और प्लस यूनिवर्सिटी लेने में दिक्कत होती है 2 लाख बच्चों का, तो अब ये 2 बार के जब एग्जाम हम कंडक्ट कर रहे हैं, तो 2 बार का एग्जाम करके उसकी कॉपी कब हम इवेलुएट करेंगे, कब हम रिजल्ट देंगे, कब चीजों को हम लाएंगे। तो इसी के साथ एक एग्जामिनेशन के पैटर्न को भी, जो ऑड एग्जामिनेशन था उसके पैटर्न को भी चेंज किया गया। वो तो फुल डिस्क्रिप्टिव होगा, लेकिन जो इवेंट एग्जामिनेशन होगा जिसका रिजल्ट हमें जल्दी देना है, वो OMR चेंज किया पैटर्न को। तो अब इस पैटर्न को एक्सेप्ट करने के लिए मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, तमाम आंदोलन भी इसके लिए हुए, लोग स्वीकार भी नहीं किए, लेकिन अंत में इसको लागू जब किया गया तो उसी में कोरोना के पीरियड में सारे नंबर्स उसी सेमेस्टर के नाते रिजल्ट में आए और आगे अब ये फॉर्मेट में आ गया है कि इसी फॉर्मेट में ही चलेगा अगर हमें सेमेस्टर करना हो। तो सेमेस्टर करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही थी वो कॉपियों का इवेल्युएशन और उसके रिजल्ट देने की प्रॉब्लम। तो अगर आप अर्ली रिजल्ट नहीं देंगे, इम्तिहान खत्म होने के 10 दिन के अंदर हम रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, तो परिणाम उसका नेचुरली होगा कि बच्चा किस सेमेस्टर का क्लास करेगा, कहाँ जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा, एक डिलेमा रहता था, उसकी फीस कैसे जमा। लेकिन अगर OMR पे एग्जामिनेशन कंडक्ट किया एक सेमेस्टर का, जहाँ 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख विद्यार्थी हैं, तो ये तो सहज हो जाएगा उसका रिजल्ट निकालना। और अगली बार जब उनका मेन होगा, मेन का मतलब इवन होगा, तो इवन में हमारे पास 2-3 महीने का, 2 महीने का समय रहता है, वहाँ कापियाँ इवेल्युएट की जा सकती है। तो एक योजना को बना करके अब इंटायर लखनऊ यूनिवर्सिटी में सब कुछ क्रेडिट और चॉइस पर पूरा पूरा कोर्स हो गया। ये बिहार में अभी एक दिक्कत है कि किसी भी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेमेस्टर में नहीं, तो पहले यूनिवर्सिटीज को सेमेस्टर को में लाना होगा, एक एक्सरसाइज यूनिवर्सिटी लेवल पर करनी होगी, एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी, उसके लिए एक स्टडी लेना पड़ेगा, तब ये चेंज हो सकता है। आज भी बिहार की एजुकेशन जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है वो 1 ईयर के बेसिस पर एग्जामिनेशन है, 1 टाइम एग्जामिनेशन है, 1 टाइम उसका। लेकिन इसको करने के लिए एक स्टेप आगे बढ़ने की जरूरत है। सबसे बड़ा काम तो सेमेस्टर का कन्वर्जन है, सेमेस्टर में रिजल्ट का काम है, उसके साथ एडमिशन प्रोसेस को साइकिल करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से एक स्कोप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने का, एक कमिटमेंट लागू करने का लगभग हर स्टेट ने ले लिया है कि हम इसको लागू करेंगे, इसकी जो बेनिफिट्स हैं अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचाएंगे, अपनी स्टेट को देंगे। मैं समझता हूँ कि अब जितनी बातें इस पे बननी चाहिए थी मोटे तरीके से NEP 2020 पर, वो बातें लगभग मैं कह चुका हूँ और इनमें अब उस तरह की कोई बात नहीं है। आगे कोई प्रश्न बनते हैं, कोई व्यवस्था बनती है तो उसका उत्तर तलाशना होगा, उस पर काम करना। मैं आभार व्यक्त करता हूँ NEC के पदाधिकारियों का, जिन्होंने आज मुझे आमंत्रित किया, एक प्लेटफॉर्म दिया। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ मिनिस्ट्री के अधिकारियों का जो इससे शामिल हैं, इसमें जुड़े हुए हैं। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ अपने सभी साथियों का जो प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारी चर्चा को उन्होंने धैर्यपूर्वक सुना, हमारी बात को सुना। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार।
मुझे लगता है कोऑर्डिनेटर साहब को ध्यान देना चाहिए, इतनी खामोशी है। और सर तब तक मैं सर प्रोफेसर एसपी सिंह सर को सुनना तो खैर हमेशा ही अपने आप में एक अद्भुत अनुभव रहता है। और सर का जो अनुभव है वो बहुत ही बृहत अनुभव है, और सर आपको सुनना हमेशा फलदायी और सुखदायी रहता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सर एक दो चूंकि आप जैसा अनुभवी आदमी को मौका मिला है सुनने का, एक एक स्टेटमेंट था प्रोफेसर मुदालियर का जब वो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को चेयर कर रहे थे, और वो बड़ा अद्भुत स्टेटमेंट था। अ डेमोक्रेसी ऑफ पीपल हु कैन थिंक ओनली कंफ्यूजडली कैन नाइदर मेक प्रोग्रेस नॉर इवन मेंटेन इटसेल्फ बिकॉज इट विल ऑलवेज बी ओपन टू द रिस्क ऑफ बीइंग मिसलेड बाय डेमागॉग्स। और इस स्टेटमेंट के रेफरेंस में फिर वो उन्होंने कहा कि अल्टीमेटली साइंटिफिक टेम्परामेंट बहुत जरूरी है, लॉजिकल थिंकिंग बहुत जरूरी है, जिसको अल्टीमेटली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अपने प्रिंसिपल्स के माध्यम से लेकर के आ रही है। मैं अपने विश्वविद्यालय में एनईपी इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का मेंबर सेक्रेटरी हूँ, और इस पूरे यात्रा में कुछ जो दिक्कतें जो महसूस हो रही हैं वो मैं एक दो करके आपसे पूछना चाहता हूँ, कैसे उसको एड्रेस किया जाए। मतलब इसमें आपका अनुभव अगर हमें मिलेगा तो शायद और अच्छा कर पाएंगे हम इसमें। जैसे एक छोटी सी बात है सर कि सीबीसीएस सिस्टम और मल्टी डिसिप्लिनैरिटी सेटअप, इसको अभी भी लोग कंसेप्चुलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो आपकी दृष्टि से इसको हम क्या करें कि जो सीबीसीएस था हमारा, उस सीबीसीएस से मल्टी डिसिप्लिनैरिटी जो सेटअप होगा हमारा, वहां हम आ पाए। और तब जब हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं जो शुरुआत में ही पॉलिसी मेंशन करती है, उसमें जो पहला जो प्रिंसिपल्स है उसमें सिनर्जी इन करिकुलम प्रिंसिपल है, सिनर्जी इन करिकुलम। सो सीबीसीएस सेटअप से मल्टी डिसिप्लिनैरिटी पर्सपेक्टिव पर लाने के लिए सर आपकी सलाह क्या होगी? क्योंकि ये सवाल मैं अक्सर फेस करता हूं जब मैं इंप्लीमेंटेशन को ग्रास रूट लेवल पर उतारने की बात करने के जाते हैं। यूजीसी कई सारी चिट्ठियां भेज चुकी है जिनमें वो मल्टीपल एंट्री एग्जिट पर हम क्या काम कर रहे हैं वो बताना होता है, होलिस्टिक एजुकेशन को कैसे इंश्योर करेंगे वो बताना होता है, मल्टी डिसिप्लिनैरिटी को कैसे इंश्योर करेंगे वो बताना होगा, टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन को कैसे इंश्योर करेंगे बताना होता है। तो सर इसको जब हम ग्रास रूट लेवल पर लेके आते हैं तो दो तीन एप्रीहेंशन हैं। नंबर एक एप्रीहेंशन जो मैंने अभी आपसे कहा कि सीबीसीएस के माइंड सेटअप से मल्टी डिसिप्लिनैरिटी पर्सपेक्टिव पर कैसे जाए, नंबर वन। नंबर टू, चूंकि आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब बच्चा स्कूल से एक डिसिप्लिन और एक डिवाइसिव माइंडसेट लेके आ रहा है और यूनिवर्सिटी में उसको हम मल्टी डिसिप्लिनरिटी सेटअप में डाल रहे हैं, तो ये हमारे लिए भी एक चैलेंज होगा कि हम उसके दिमाग में उसको हम एक एक जो एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट में मल्टी डिसिप्लिनरिटी और होलिस्टिक पर्सपेक्टिव हम उसको दे पाए। तो इस एंगल से सर जो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फॉर एग्जांपल मैं फिजिक्स पढ़ना चाहता हूं, मैंने फिजिक्स लिया और मल्टी डिसिप्लिनरिटी सेटअप है तो फिजिक्स के साथ में म्यूजिक भी पढ़ सकता हूं और म्यूजिक के साथ मैं संस्कृत भी पढ़ सकता हूं। इसमें जो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा सर, उसको हम किस तरह से एड्रेस करें ताकि जो फिजिक्स के कोर वैल्यूज हैं या फिजिक्स का जो एम्फेसिस है, जो थर्स्ट है, वो भी बचा रहे, और जो मल्टी डिसिप्लिनरिटी का आइडिया है जो पॉलिसी बड़े स्पष्ट तरीके से कह रही है, एंशिएंट इंडियन मॉडल के एग्जांपल देकर के कह रही है, प्रिंसिपल्स की बात भी कर रही है। तो सर दूसरा दूसरा जो पहला तो प्रश्न हो गया सीबीसीएस से मल्टी डिसिप्लिनरी सेटअप। दूसरा जो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सब्जेक्ट फोकस्ड, जब सब्जेक्ट को ओरिएंट करेंगे तो जैसे फिजिक्स वाले मुझसे पूछते हैं अक्सर कि हम इसमें जो फिजिक्स की जो एसेंस है, जो स्पिरिट है, वो कैसे इसको इंश्योर करेंगे, तो निश्चित रूप से वो हम तभी कर पाएंगे जब हम उसको एक सर्टेन पोर्शन ऑफ क्रेडिट उसको डिस्ट्रीब्यूट करके दें। तीसरा जो एक एप्रीहेंशन है सर वो ये है कि जब आप एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का गजट नोटिफिकेशन पढ़ते हैं तो उस गजट नोटिफिकेशन में नैक ए ग्रेड और एनआईआरएफ की रैंकिंग चाहिए होती है। मैं भी चूंकि बिहार में ही बैठा हुआ हूं, तो जब ये नैक ए ग्रेड और एनआईआरएफ की रैंकिंग चाहिए होंगी सर, तो ये जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में जो हम क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं या क्रेडिट अर्न की बात कर रहे हैं, ये बहुत सिलेक्टिव फेज में रह जाएगा। इसके लिए आपका क्या सुझाव होगा सर? और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही, और वो जो बात है, ये अक्सर प्रश्न मुझे फेस करना पड़ता है जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है। सो ये कहने की बात नहीं है क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिटरेट कर रही है कोठारी कमीशन के आइडिया को, जो कि मल्टीपल टाइम्स उसको रिटरेट किया गया है। लेकिन उसके अपोजिट जब आप देखते हैं तो जो बजट कट इन एजुकेशन है वो भी हमको दिखाई पड़ता है। खैर, इसमें जो एक बड़ी बात है कि वो है प्राइवेट पीपीपी मॉडल और प्राइवेट इन्वेस्टर्स। खास करके जब पॉलिसी की मैं एनालिसिस करता हूं तो 17 बार एक टर्म का इस्तेमाल करती है पॉलिसी जिसको फिलैंथ्रोपिक इन्वेस्टमेंट के नाम से कहते हैं, फिलैंथ्रोपिक इन्वेस्टमेंट। और आपने एक अच्छी बात कही कि 100 विश्व के 100, मुझे लगता है कि इस पर शायद सर्वे हो चुका है
नीपा जो है दिल्ली में, उसको दायित्व दिया गया और उसने टॉप 200 इंस्टीट्यूशंस के साथ बातचीत की है। उसमें से जो मैंने पढ़ा था अभी रिसेंटली, उसमें 8 इंस्टीट्यूशंस ने तुरंत अपना कंसेंट दे दिया है, कैंपस खोलेंगे। अब जब वो कैंपस खोलेंगे तो जो हम इंडियन वैल्यूज के ऊपर फोकस करने जा रहे हैं सर, अपने करिकुलम के थ्रू, अपने टोटल एमबीएस के थ्रू, उन पर क्या एक स्टैंड बनेगा? हम क्या उनसे सीखेंगे या वो हमसे सीखेंगे? क्योंकि जब हम इंडियन स्पिरिट की बात करेंगे, इंडियन हेरिटेज की बात करेंगे, अपने लेगेसी की बात करेंगे, तो क्या हम उनसे सीखेंगे या वो हमसे सीखेंगे? क्योंकि सर आप तो अनुभवी आदमी हैं, आप तमाम तरह के इंस्पेक्शंस में रहते हैं, हमको इतनी बात तो समझ में आती है कि जो पैरामीटर्स हैं, चाहे वो हम टाइम्स रैंकिंग पैरामीटर की बात करें, क्यूएस रैंकिंग पैरामीटर की बात करें, या हम अपने इंडिया में अगर आईआरएफ की बात करें, ये जो सारे पैरामीटर्स हैं, इन पैरामीटर्स को पॉलिसी एकोमोडेट करने की बात कर रही है। और जब एकोमोडेट करेगी तो करिकुलम के माध्यम से करेगी, क्योंकि रिवैम्पिंग करिकुलम, पेडागोजी, असेसमेंट एंड स्टूडेंट सपोर्ट, ये 4 बड़े एजेंडे हैं जो हायर एजुकेशन सेक्शन में कहते हैं। और आखिरी बात जो सर मैं आपसे जानना चाहता हूं वो ये है कि पॉलिसी, मेरा जो अपना अनुभव है, छोटा सा अनुभव है मेरा, वो ये कहता है कि जो स्कूली शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं वो स्कूल एजुकेशन के सेक्शन को पढ़ रहे हैं जो पार्ट 1 में आता है। जो उच्च शिक्षा के जुड़े हुए लोग हैं वो पार्ट 2 को पढ़ रहे हैं जिस पर हायर एजुकेशन की बात होती है। सर मेरा ये अनुभव है कि पार्ट 3 और पार्ट 4 बहुत कम लोग पढ़ रहे हैं जी का। तो वो बार बार इशारा कर रहे हैं, साफ इशारा कर रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ, ओडीएल कंपोनेंट की तरफ। और ये इशारा मीनिंगलेस नहीं है, क्योंकि कस्तूरी रंगन साहब की चिट्ठी हम जब देखें, जब वो रिपोर्ट ड्राफ्ट सबमिट कर रहे हैं, तो कस्तूरी रंगन साहब कह रहे हैं कि ये जो पूरा पॉलिसी का जो पूरी यात्रा है, उस पूरी यात्रा को 5 पिलर्स पर आधारित किया गया है। चाहे वो एक्सेस हो, चाहे वो क्वालिटी हो, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे वो अकाउंटेबिलिटी हो, और चाहे वो अफोर्डेबिलिटी हो। तो ये जो पिलर्स है, 5 पिलर जिनके ऊपर ये पॉलिसी पूरी फोकस कर रही है, इसमें जो फिलैंथ्रोपिक इन्वेस्टमेंट है उसको हम अपने जो ये डिविजन्स हैं हमारे, खास करके तब जब हम एक तरफ एनआईआरएफ में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को बढ़ते हुए देख रहे हैं और शांति निकेतन जैसे संस्थान को नीचे गिरते हुए देख रहे हैं लगातार, इसको हम कैसे एड्रेस करेंगे इन 5 पिलर्स को सर? क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा लंबी कह दी अपनी बात, लेकिन आप जैसे अनुभवी आदमी को पाने के बाद ये लालच रोक नहीं पाया मैं। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद श्रीवास्तव सर। बेसिकली जितने सारे कंसर्न आपने दिए हैं, जो भी इसको लागू कर रहा है वो सब इसको फेस कर रहा है। इसमें एक भी बात अलग नहीं है, सवाल उठते हैं लेकिन सवाल के जवाब भी मिलते हैं, ये देखने की बात है। एक्चुअली जो लागू कर रहा है हायर एजुकेशन, मैंने अभी अपनी बात में भी ये बात कही थी कि जो लागू कर रहा है हायर एजुकेशन, बदलाव 0 से हो रहा है और हम इसको लागू करना चाह रहे हैं 5+3+3+4 के बाद। हमारा अब जो स्टूडेंट उस 4 का आएगा, जिसको आपने सेकेंडरी एजुकेशन के नाम से लिया, स्टेज लिया है, 4th स्टेज का जो स्टूडेंट होगा हमारे पास, वो 9 to 12 होगा, 9, 10th, 11, 12। वहां पर कोई सब्जेक्ट की बॉन्डिंग नहीं है, कोई फैकल्टी नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है। वो जो पढ़ करके आएगा, ये आधी प्रॉब्लम जो सवाल आपने रेज किए हैं उसके आते ही इसमें का 90% प्रॉब्लम खत्म होगा, कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन आज चूंकि ये हम शुरू करने जा रहे हैं तो ये सारे प्रॉब्लम हमारे साथ आ रहे हैं। बेसिकली क्या है, सभी विद्वान हैं और एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, एकेडमिशियन हैं, 3 F की लड़ाई हमेशा से रही है। एक फ्रीडम एजुकेशन में, और दूसरा फैकल्टी, और तीसरा F फाइनेंस। ये 3 F अगर सॉल्व हो जाएं तो मैं समझता हूं किसी यूनिवर्सिटी कोई प्रॉब्लम नहीं है या पूरी कंट्री की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हम पहले से इसकी स्टडी करते आए 3 F की। फ्रीडम, हम सभी बोलते हैं फ्रीडम नहीं है। ऑटोनॉमी हमारे पास, एकेडमिक ऑटोनॉमी भी नहीं है हमारे पास। अगर ऐसी बात भी करें तो एक यूनिवर्सिटी के पास एकेडमिक ऑटोनॉमी भी नहीं है। जैसे बिहार में जो प्रक्रिया है कोर्स लाने का, सारे कोर्स का सिलेबस सरकार से मंजूर हो गया। तो एक तो यूनिवर्सिटी में बनने की प्रक्रिया है कि बीओएस आएगा, फैकल्टी आएगा, सिंडिकेट आएगा, सीनेट आएगा, तब वो यहां बनेगा।
और इसको बनाने में 6 महीने पहले लगे, 6 महीने इसकी मीटिंग में लगे, साल हुए। तो 1 साल तो कोर्स को जब तक हम प्रिपेयर करते हैं 1 साल लग जाता है यूनिवर्सिटी में, और जब लागू करना चाहते हैं तो सरकार के पास भेजते हैं। तो एक ऑटोनॉमी फी नहीं है, फ्रीडम नहीं है, क्या कोर्स कंटेंट पेडागोजी हम क्या लेने जा रहे हैं उस पर भी है कि, तो हमेशा की एक बात रही है। जो दूसरी बात, फैकल्टी का सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट, ये फ्रीडम कितने लोगों के पास है कि वो अपनी फैकल्टी को सिलेक्ट कर सके, क्योंकि फैकल्टी तो एक इंस्टीट्यूशन के लिए है। कितने लोगों के पास ये फैकल्टी है, बोले कोर्स का कैसे बनाए, और कोर्स बन भी गया तो पढ़ाने के लिए फैकल्टी लानी है, उसको कैसे ले आएंगे, और अगर फाइनेंशियल एस्पेक्ट नहीं क्लियर है तो सैलरी कहाँ से देंगे, व्यवस्था कहाँ से करेंगे, उनको पे कहाँ से करेंगे, कैसे अट्रैक्ट करेंगे फैकल्टी को। तो ये तो बहुत ट्रेडिशनल प्रॉब्लम हमारे साथ शिक्षा के साथ हमेशा रही है, और जब भी कभी कोई चर्चा होती तो इन तीनों एक पे चर्चा होती। तो एक प्रॉब्लम जो अभी हम कर रहे हैं, हर यूनिवर्सिटी में हो रहा है, इंटर फैकल्टी, इंट्रा फैकल्टी, एक बास्केट पेपर्स हम बना रहे हैं। एक फाउंडेशन कोर्स का पेपर होगा, एक इलेक्टिव पेपर होगा, और एक फ्रीडम का पेपर होगा, एक बास्केट हम बना रहे हैं। ये तो हमने बना के दिया ना। ये फ्रीडम जो 9, 10th, 11th, 12th में आएगी, ये वो खुद चुन रहा है, कोई बास्केट नहीं हुआ। 9, 10th, 11th, 12th में कोई बास्केट ऑफ पेपर्स नहीं है, ना कॉमर्स की बंदिंग है, ना आर्ट्स की है, ना साइंस की, किसी की नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं है। उसको 5 पेपर जो लेने ले लिया, पढ़ लिया। तो जब वो निकल करके आएगा तो जो आज हम कल्पना कर रहे हैं, जो हमारी दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें मैं समझता हूँ कि अपने आप समाप्त होने की दिशा में जाएगी। आज हमें जो चाहिए, जो करना है, इन प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे टुकड़ों में फेज आउट कर सकते हैं। और अभी अगर चॉइस की बात करें तो हर यूनिवर्सिटी की साइज, हर यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट, कितने नंबर्स का डिपार्टमेंट है, हर यूनिवर्सिटी की फैकल्टी एक जैसी नहीं है। अभी तो अंडर फैकल्टी क्राइसिस में तो सारी यूनिवर्सिटी चल रही हैं, 50-60% हर जगह वैकेंसी है, नहीं पूरा हो पा रहा है। तो जब हम इस लेवल पर लाएंगे तो उन्हीं को टच करें जिससे हम कर लें, क्योंकि जब आप बनाते होंगे, हर यूनिवर्सिटी बना रही है अपना एक इलेक्टिव सब्जेक्ट, जो CBCS का एक ग्रुप बना रही है, कौन सा वो लेगा, कोर सब्जेक्ट हुआ, उसके सेकेंडरी सब्जेक्ट हुए, फिर इसमें क्या क्या वो लेगा चॉइस का, एक बास्केट हर यूनिवर्सिटी तैयार कर रही है। अभी फ्रीडम हम नहीं दे पा रहे, क्योंकि अगर देंगे फ्रीडम, इस तरह से ओपन फ्रीडम देंगे तो बड़ी बात आएगी, फिर एग्जामिनेशन कब कंडक्ट करेंगे, इम्तहान कब निकालेंगे, रिजल्ट कब निकालेंगे, ये एक प्रॉब्लम आएगी हमारे साथ। इसीलिए हमने उसकी एक ग्रुप बनाया है, कंपार्टमेंट बनाया है, उसी कंपार्टमेंट से पेपर का सिलेक्शन। तो ये फ्रीडम हमने इसलिए बनाई है जानबूझ करके कि हम एग्जाम कैसे लेंगे। जैसे स्टूडेंट फ्रीडम के नाम पे लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक रिजीम में जो आर्ट्स के 33 सब्जेक्ट हैं, 33 सब्जेक्ट्स हैं, कोई भी लड़का ले सकता है। तो अगर 33 सब्जेक्ट ऑप्ट किया किसी ने, ये सोचा नहीं गया उस समय, 33 सब्जेक्ट ऑप्ट किया तो हर सब्जेक्ट के 3 पेपर होंगे। तो इम्तहान का जो ड्यूरेशन बनेगा वो 33 × 3 बनेगा, एक पेपर अगर एक दिन में होगा तो 99 डेज, रेगुलर डेज एग्जाम को कंडक्ट करने में लगेंगे। अब आप उम्मीद कीजिए कि अगर सेमेस्टर हम लागू कर देंगे और सेमेस्टर में यही फ्रीडम देंगे तो 99, 100, 200 डेज तो इम्तहान में चले जाएंगे। ये टीचिंग क्रेडिट कब पूरा होगा? यानी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि एडमिशन लेने के बाद अगर हम केवल इसी पैटर्न पर चले जाएंगे तो एग्जामिनेशन ही एग्जामिनेशन पूरे साल भर हम कराएंगे, कभी पढ़ाने का नंबर भी नहीं आएगा। अगर 200 डेज में हम एग्जामिनेशन खत्म करेंगे, नेचुरली विवश होकर के मुझे जब मैं था तो उसको 10 ग्रुप्स में डिवाइड करना पड़ा, और 10 ग्रुप्स करने के बाद फिर 30 डेज में एग्जाम आपके ओवर हो जाएंगे। ये जो आज हम बास्केटिंग कर रहे हैं, एक ग्रुप बना रहे हैं, सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, वो इसी चीज को ध्यान में रख करके हर यूनिवर्सिटी कर रहे हैं कि अगर ओपन फ्रीडम दे देगा तो 33 सब्जेक्ट आर्ट्स फैकल्टी का, 14 सब्जेक्ट साइंस फैकल्टी का, और सिमिलरली कॉमर्स के भी ग्रुप हैं। इस हिसाब से फिर इम्तहान कितने दिनों तक हम रन करेंगे वो कभी खत्म नहीं हो पाएगा, कभी रिजल्ट नहीं आ पाएगा। तो बेसिकली ये जो डिसीजन है वो डिसीजन उस चीज को लेकर के,
हर यूनिवर्सिटी अपने उस प्रॉब्लम को देखते हुए डिसीजन कर रही है, कोई कॉमन ग्रुप नहीं है। हर यूनिवर्सिटी ने ग्रुप बनाया है, अपना अपना ग्रुप बनाया है, उस अपने ग्रुप के साथ यूनिवर्सिटी काम कर रही है। तो ये एक फार्मूला जो आपका होगा वो हमारे यहाँ नहीं लागू होगा, जो मेरा फार्मूला होगा वो तीसरी जगह नहीं लागू होगा, क्योंकि जो 3F का कॉन्सेप्ट है वो पहले आ जाएगा। जब भी हम कभी लागू करना चाहेंगे तो वो 3F पहले आ जाएंगे, इसको लागू करना बाद में होगा। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग अभी बड़े विश्वास के साथ इस यात्रा को जारी रखें और ये समस्याएं समाधान हो जाएंगी। कोई इस तरह की बात इसमें नहीं, क्योंकि जो कम्पैक्ट है, इसका इंटीग्रेटेड फॉर्म है, वो समस्या खत्म कर रहा है। लेकिन हमारी समस्या आज ये है कि वो 14 साल बाद वो स्टूडेंट आएगा और हमें आज ही उसी फॉर्मेट पे काम करना है। जैसे सिलेबस चेंज हम करते हैं तो फर्स्ट ईयर का सिलेबस चेंज करते, सेकंड ईयर का बाद में लाते हैं, 1 साल बाद आएगा, थर्ड ईयर का उसके बाद आएगा। यानी अगर डिजाइन ऑफ कोर्स हम करेंगे तो एक इंटायर कोर्स का कंटेंट का एक स्केलेटन पहले बनाना होगा, और जब हम उसके स्केलेटन को बनाएंगे तो कौन सा पर्चा ज्यादा वैल्यू का है, इतना पढ़ करके सर्टिफिकेट हो जाएगा, इतना पढ़ के डिप्लोमा हो जाएगा, इतना कोर्स खत्म करके डिग्री हो जाएगा। वो क्विट कर रहा है तो कुछ लेके तो जाए, बिना आउटकम के जाएगा तो कुछ भी नहीं आएगा। 1 साल उसने बर्बाद किया, ग्रेजुएशन को दिया और एक सर्टिफिकेट हमने उसको अवार्ड कर दिया, तो उसके पास उतना तो नॉलेज होना चाहिए कि उस सब्जेक्ट का बेसिक कोर जो सर्टिफिकेट लायक है वो उसके पास पहुंच जाए। ये जो चॉइस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट होंगे, उसका स्केलेटन को तोड़ करके कॉम्बिनेशन बनाने का काम होगा, ये भी घिसे पीटे ढंग पे नहीं होगा। ये काम भी बहुत ही सोच समझ करके होगा। अगर स्टूडेंट 1 साल के लिए सर्टिफिकेट लेकर के गया तो कोई तो वैल्यू ले जाए वो सब्जेक्ट की। 2 साल के साथ डिप्लोमा के साथ जा रहा तो एक वैल्यू इनहेरिट करके जाए वो, और 3 साल के साथ डिग्री जा रहा तो परफेक्ट को करके जाए, और 4 साल के साथ रिसर्च लेके जा रहा तो फिर पीजी के लिए एक अच्छा स्टूडेंट हमारे पास आए। ये जो आउटकम हमें देना है, ये माइक्रो लेवल का टास्क है, और एक सब्जेक्ट वाला अपना ही सब्जेक्ट कर सकता है, दूसरे सब्जेक्ट वाले को नहीं दे सकता ये करने। अब हमें पता है, जैसे एक तीसरा सवाल आपने किया कि जो क्रेडिट का वेटेज है, वेटेज अभी नहीं हमने देखा है। हमने 6 पेपर हैं, 6 को 4-4 करके 24 क्रेडिट कर दिया। लेकिन हम सभी विद्वान साथी अपने अपने विषय के बारे में जानते हैं कि कुछ उसके कठिन सब्जेक्ट होते हैं जिसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, ज्यादा स्कोर करने की जरूरत है, ज्यादा मेहनत करते हैं तो स्कोर होता है। कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट हैं जो साधारण तरीके से पढ़ते हैं तो भी निकल जाते हैं। अगर हम वेटेज नहीं दे रहे हैं क्रेडिट का, कि जो हमारा कोर वैल्यू सब्जेक्ट है उसको हमने 4 के बजाय 6 क्रेडिट कर दिया, वो पेपर जो प्रैक्टिकल पेपर है जो आसानी से किया जा सकता है, जिसके लिए पॉपुलर पेपर है, उसको 2 क्रेडिट का कर दीजिए। अब तक किसी ने नहीं किया है। यानी क्रेडिट का वेटेज देने का काम, सपोज कीजिए कॉमर्स है, अब कॉमर्स में अकाउंट्स, टैक्स, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और लड़का जब इसके साथ मार्केटिंग आता है, HR आता है, कुछ और सब ऑर्गेनाइजेशन में जाता है तो एक अलग एस्पेक्ट है। अगर कॉमर्स की कोर वैल्यू अकाउंट्स और टैक्स में है तो इसको हम 6 क्रेडिट का कर दें, और जो दूसरा पेपर है 2 क्रेडिट का कर दें। इसकी टीचिंग आवर्स बढ़ा दें, उसकी टीचिंग आवर्स घटा दें। ओवरऑल 24 क्रेडिट की बात आई थी। वेटेज पे तभी हम चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। जो आपका प्रश्न आया, इस वेटेज पे तो चर्चा ही नहीं हो रही है, और मेरे ख्याल में सारी यूनिवर्सिटी ने कॉमन क्रेडिट बांट दिया है। सारा कठिन पेपर हो, आसान पेपर हो, जो भी पेपर हो, सब बांट दिया, एक सबने ऐसे बांट दिया। तो अगर इन डेप्थ हम जाएंगे, बहुत गहराई में जाएंगे और क्वालिटी निकालना कुछ चाहेंगे तो इस क्रेडिट का वेटेज देना। अभी क्या है, जो हमने ग्रुप दिया, चॉइस का ग्रुप दिया, उस चॉइस के ग्रुप में उसको पेपर लेना ही लेना है। अल्टीमेटली अगर इसेंस की बात करें तो ये तो फोर्सिबली हम पेपर पढ़वा रहे हैं। अगर कोई और ऑप्शन हम दे देते तो शायद कुछ और करता हो, कि अपने ही ग्रुप का एक पेपर इलेक्टिव में ले लीजिए, कि मल्टीपल में आने की जरूरत ही नहीं आपको, ये ऑप्शन दे दो तो शायद कोई आए। लेकिन अभी इन इश्यूज पर हम नहीं चर्चा कर रहे हैं, अभी इस पर चर्चा हो रही है कि इसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करें, और इम्प्लीमेंटेशन में वो रियल प्रॉब्लम जो आपने सारी प्रॉब्लम बताएंगे ये सबके सामने है। क्योंकि अभी वो उस लेवल का स्टूडेंट आया ही नहीं। स्टूडेंट तो एक कंपार्टमेंटल लेवल पर तैयार होकर के आया, ये साइंस पढ़ा, ये कॉमर्स पढ़ा, ये आर्ट्स पढ़ा, उसी पेपर का एग्जाम दिया। ना इसका इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच था, ना कोई चॉइस पेपर था, ना कुछ कंपल्सरी पेपर्स थे, उसको पास किया और वो चला है। तो 12 साल पढ़ने के बाद अगर किसी से हम ये कहें कि ये सब्जेक्ट के पेपर को छोड़ दीजिए और इसकी जगह आप ये म्यूजिक वाला हिस्सा ले लीजिए,
या फिजिक्स वाला ले लीजिए। तो लेगा नहीं लेगा हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन ये है कि वो लेगा तो फोर्सी से लेगा, अगर ऑप्शन होगा तो नहीं लेगा, क्योंकि उस माइंडसेट से वो आया हुआ है, 10+2 के माइंडसेट से आया। और आर्ट्स में पढ़ेगा, साइंस में मैथ पढ़ेगा। अभी एक जो फॉर्मेटिंग है एजुकेशन की आउटकम वाली, कि अगर इंजीनियर बनना तो मैथ पढ़ो, म्यूजिक पढ़ के इंजीनियर नहीं बनोगे। तो एक जो, या बायोलॉजी पढ़ो, नहीं पढ़ के तो डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर नहीं बनोगे। ये जो अभी कंपार्टमेंटलाइजेशन है वो पुराने फॉर्मेट पर है, लेकिन वो माइंडसेट अभी भी हम बदल नहीं पाए, बदलने में समय लगेगा, बदल भी नहीं सकते, क्योंकि स्ट्रक्चरल चेंज की जब बात आएगी, इंटायर स्ट्रक्चर चेंज हो रहा, चाहे वो पढ़ाने का स्ट्रक्चर है, चाहे कोर्स में चॉइस देने का स्ट्रक्चर है, चाहे वो पास करने का सिस्टम है, चाहे कॉपी जांचने का सिस्टम है, सब चेंज हो रहा है। एक चेंज तो हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं, और इतने सारे चेंज एक साथ आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से अच्छे भविष्य के लिए हमें स्वीकार करना होगा, क्योंकि इसका भविष्य उत्तम है। आज की तारीख में हमें फैकल्टी की भी क्राइसिस है, फिनिश की भी क्राइसिस है, और फ्रीडम तो पता नहीं, उसकी चर्चा की जाए ना की जाए वो तो अलग बात है, कहीं पर है और कहीं पर नहीं है, जो भी है। तो इन विषयों को जब डील करेंगे हम, तो बहुत ओपननेस के साथ डील करना है। हमारी कमियां भी कुछ हो सकती हैं, उन कमियों पर चर्चा करके उसका उपाय अपने ही अंदर ढूंढना पड़ेगा। तो उसी यूनिवर्सिटी सेटअप में होगा। अब जिस यूनिवर्सिटी में जियोलॉजी सब्जेक्ट नहीं है, तो उसका ऑप्शन हम कहाँ से देंगे? जिसमें एंथ्रोपोलॉजी नहीं, उसका एक्सेप्ट हम कहाँ से देंगे? तो अब सारी यूनिवर्सिटी में सारे सब्जेक्ट हों, सारे कॉम्बिनेशन हो, इसका मतलब हमने ऑप्शन अपनी यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट में दिया, तो भी तो रिस्ट्रिक्ट किया हमने। इसलिए अभी तो तकलीफ ये हम लोगों को 8-10 साल होगी इस सिस्टम में, लेकिन जब नीचे के सिस्टम का विद्यार्थी आएगा तो बदलाव वहां से आएगा, तब यहाँ जब परिवर्तन होगा, तो एक अच्छा भविष्य भारत का होगा इस शिक्षा नीति के साथ, क्योंकि सारी कल्पनाएं सुंदर है, और एक आदमी को बनाने में, एक उसको शिक्षित करने में, प्रशिक्षित करने में, सिद्धार्थ को बुद्ध बनाने में बहुत समय लगेगा। ये आसान सा काम नहीं है। बुद्ध भी सिद्धार्थ की यात्रा करने के बाद बुद्ध बने थे। तो ये बुद्ध बनाने में एक बहुत बड़ी यात्रा चलेगी। अभी तो कोई इसके लिए मानसिक रूप से वो प्रिपेयर हो पाया नहीं हो पाया, कठिन कहा जा सकता है। सारी यूनिवर्सिटी प्रिपेयर हो गई हैं, कर रहे हैं, हम सभी कर रहे हैं, उसी दिशा में जा रहे हैं। तो करते करते उसके पक्ष में चले जाएंगे, उसके विषय में चले जाएंगे, क्योंकि लाभ ही लाभ है इसमें। वो विद्यार्थी जो 2 साल बर्बाद करके चला जाता था, बीए नहीं कंप्लीट कर पाता था, तीसरे में पढ़ा चला गया, एक तो डिग्री पा रहा हो, और उससे रोजगार भी उसको मिल रहा है। पीजी नहीं करने को पाएगा, वो फिर आके कर लेगा, लेकिन रोजगार तो उसे मिल रहा है, छोटा मोटा रोजगार उसे मिल जाएगा। इकोनॉमिक्स का 1 ईयर किया, और सर्टिफिकेट में हमने वो पेपर डाल करके दिए जो मार्केट में आज अच्छी सी जिनकी जॉब स्ट्रक्चर है, चला जाएगा वो। सिमिलरली जितना सारा वोकेशनल कोर्स खुला, जो स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज हैं, आपने देखा होगा उनका स्केल लेवल है, जो 1 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो जो बैचलर लेवल का कोर्स है वो 5, 6 और 7 है, वोकेशनल कोर्सेज। तो जो वोकेशनल काउंसिल ऑफ इंडिया है, स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, वो हर कोर्स के कंटेंट को तैयार किया, और इसी मॉड्यूल में तैयार किया कि अगर अकाउंट्स का कोर्स अकाउंटेंट बनाना है, तो अकाउंट में अकाउंट क्लर्क भी होगा, असिस्टेंट अकाउंटेंट भी होगा, अकाउंटेंट भी होगा, और एक फाइनेंस ऑफिसर भी होगा, अकाउंट ऑफिसर भी। 4 लेवल का कोर्स। तो इस कोर्स को इस रूप में उन्होंने डिजाइन किया कि अगर हम किसी को सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तो वो कोर्स हमारा इस लेवल का हो कि वो अकाउंट क्लर्क बन जाए। और अगर दूसरे साल का कोर्स उसे हम दे रहे हैं, डिप्लोमा दे रहे हैं, तो इस लेवल का हो कि असिस्टेंट अकाउंटेंट बन जाए। बने ना बने वो अलग बात है, मतलब उस लेवल का हम प्रिपरेशन करके दे रहे हैं। और अगर 3 साल का कोर्स दिया, तो उसे जो है अकाउंटेंट का एक कोर्स उसको दे दिया, वो अकाउंटेंट के कोर्स में स्किल अपनी लेके जा सकता है। सिमिलरली अब इसके ऊपर अगर उसे जाना है, तो स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज में 5 के बाद 7 तक यहाँ आया, 8 और 9 पीजी के कोर्सेज हैं, और 10 उसका रिसर्च लेवल है। जो उसका 1 लेवल है वो आईटीआई से शुरू होता, बाकी पॉलिटेक्निक तक आता। तो ये जो डिवीजन कोर्स का हुआ है, वो एक फ्रूट क्रिएट करने के लिए हुआ, फ्रूट लेने के लिए हुआ, लेकिन हमने सिलेबस को उस रूप में कितना एक्सेप्ट किया और उसको कैसे बनाया, डिपेंड इस पर।
और इस सिस्टम को लागू करने का दायित्व तो हम ही सबका है। अगर हम मन से प्रिपेयर हो करके, क्योंकि जब आप मन से प्रिपेयर होंगे तो काम कर लेंगे, कोई भी बाधा आएगी तो उसका रास्ता निकलेगा। लेकिन अगर बाधा आ गई, हम पीछे लौटना चाहते हैं, ये सिस्टम पीछे नहीं लौटने देगा। पीछे लौटने का कुछ भी नहीं है, आगे बढ़ने का। पीछे से सपोर्ट सिस्टम आपका है तो आगे बढ़ने का है। तो सरकार की तरफ से भी पूरी सदा सहायता है, फाइनेंसिंग भी सदा सहायता है, व्यवस्था में भी, रिक्रूटमेंट में भी बातें तेजी के साथ चल रही हैं, वो भी हो जाएंगी कुछ दिनों में। तो इसको लागू करने के लिए जो एक्सरसाइज है, बेसिक एक्सरसाइज है, वो यूनिवर्सिटी लेवल पर जारी होगी। कोई प्रोग्राम कोई बना दे, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का कॉम्बिनेशन परमिटेशन अलग अलग है, सिस्टम अलग है। अभी तो जहां एनुअल सिस्टम बहुत सारी यूनिवर्सिटी बिहार में तो सभी में चल रहा है, उसको तो सेमेस्टर कन्वर्ट करना पड़ेगा, और सेमेस्टर कन्वर्ट करने के लिए फिर इसी लेवल पर लाना पड़ेगा कि सेमेस्टर में जो डिग्री और सर्टिफिकेट है किस लेवल पर है। एक बार बहुत अच्छे प्रश्न आपके थे श्रेष्ठ साहब, मुझे भी अच्छा लगा, क्योंकि मैं 76 से हायर एजुकेशन में काम कर रहा हूँ। उस हिसाब से लगभग 45 साल हो गए मुझे, जो एसोसिएट प्रोफेसर भी रहा, प्रोफेसर भी रहा, प्रिंसिपल भी रहा, वाइस चांसलर भी रहा, फिर वाइस चांसलर। तो एक यात्रा इतने क्रम में चली कि वो क्रम उसका बदलता गया। मैंने कॉलेज से शुरू करके, तब इस कॉलेज से शुरू किया 76 में, एसोसिएट प्रोफेसर बने, प्रोफेसर बने, प्रिंसिपल बने, वाइस चांसलर बने, फिर आगे किया। तो एक उसके साथ जो एक सिस्टम है, हिम्मत नहीं हारना चाहिए, सब चीजें बदलती हैं। मैं शायद अगर हिम्मत हारता तो लखनऊ यूनिवर्सिटी का सिलेबस नहीं बदल पाता, एग्जामिनेशन पैटर्न नहीं बदल पाता। इतने एफजीज मेरी जलाई गई, इतना मुर्दाबाद हुआ, वो अखबार ही रंगे रहते थे, लेकिन वो बदलना जरूरी था, इसलिए बदला। फीस बढ़ाना जरूरी था। जब आप सेमेस्टर एग्जाम में जाएंगे तो नेचुरली एक साल के एग्जाम की फीस दुगनी हो जाएगी, वो भी बढ़ाना जरूरी था। 78 करोड़ पर एनम इनकम बढ़ी लखनऊ यूनिवर्सिटी, सेमेस्टर सिस्टम के एग्जामिनेशन या फीस बढ़ाकर। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो एग्जामिनेशन के पैसे से ही रन कर, कोई और फंड उनके पास नहीं। लेकिन ये आता है, फंड के बिना कोई यूनिवर्सिटी बंद हुई आज तक ऐसा सुना नहीं होगा। फंड नहीं था, वो सरकारी यूनिवर्सिटी बंद हो गई है, ऐसा नहीं सुना। प्राइवेट दुकान कुछ भी हो सकता है, इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हुए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो फंड क्राइसिस से नहीं बंद हुए, वो बंद हुए स्टूडेंट के ना आने से। कि जो क्वालिटी देना चाहिए था वो क्वालिटी हमने नहीं दिया, और वो मार्केट में कुछ उसकी कीमत नहीं बनी। अगर ये क्वालिटी देने वाले, आज इंजीनियरिंग कॉलेज में भीड़ है, 10 सीट पे 100 लोगों की एप्लीकेशन, लेकिन अगर क्वालिटी नहीं दिया तो एक साल भीड़ रहेगी, दूसरे साल में खत्म। ये नेचुरली जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो भी कमियां होंगी हमें अपने सिस्टम में ढूंढ करके ठीक करके आगे बढ़ना। बहुत बहुत आभार आपका प्रश्न पूछने के लिए। थैंक यू सर, धन्यवाद। Professor Santosh Kumar, you can ask question. Professor Santosh Kumar, please. सर आप अनम्यूट कर दीजिए सर, आप म्यूट में हैं सर। ठीक है। यस अभी ठीक है सर। अच्छा, तो मैं स्वीडन जाता रहता हूँ केटीएच इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। वहाँ मैं बायो गैस के रिलेशन में बहुत एक्टिवली एसोसिएटेड हूँ। मैंने वहाँ क्या पाया कि ये जो I+3+3+4 सिस्टम है, परहैप्स ये स्वीडन का ही आया है। स्वीडन में एक चीज मैंने बहुत अच्छे ढंग से देखा कि 3 जो है, 5 का जो 3 पार्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसमें बच्चों को कुछ नहीं करवाते हैं, केवल प्लेग्राउंड है। हम लोग इंडिया में थोड़ा नर्वस हो जाते हैं कि 5 साल की बच्ची हो गई, लिखना नहीं जानती, ये नहीं करती। ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हम लोग को एक प्रिकॉशन लेना होगा अपने स्कूल के बेसिक स्टेज में कि बच्चों पर किसी तरह का प्रेशर ना हो कि वो कलम ही उठाएं, वो पहाड़ा गिनती शुरू कर दें, काउंट करना। तो यहाँ से मुझे आगे बढ़ना है। एक पॉइंट मेरा ये था। दूसरा पॉइंट ग्रेजुएशन लेवल पर, कि फर्स्ट ईयर अगर कोई कंप्लीट करता है सर्टिफिकेट के लिए, सेकेंड ईयर है डिप्लोमा के लिए, तो सर्टिफिकेट के लिए आप क्या पढ़ाएंगे? वो जैसे कि अभी
वाइस चांसलर साहब ने एक पॉइंट उठाया कि अकाउंट्स बनाना है, असिस्टेंट अकाउंटेंट को क्या करना है, दूसरे को क्या, जो मैच्योर्ड अकाउंटेंट होगा उसको क्या जानना चाहिए। उसी तरह से मैं चूंकि बॉटनी में चाहता हूँ कि गार्डनिंग, अगर कोई सर्टिफिकेट लेता है तो उसको गार्डनिंग की तरह अगर हम प्रेरित करें तो क्या पढ़ना चाहिए उसको, वह अप्लाइड वैल्यू पढ़ना चाहिए, टेक्नोलॉजी पढ़ना चाहिए, प्लांट्स को पहचानने का। तो सिलेबस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सेकेंड ईयर ये डिप्लोमा, थर्ड ईयर डिग्री, और फाइनल ईयर जो फोर्थ ईयर का होगा उसमें कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स आएंगे। यह मैं निश्चित मानता हूं कि बायोटेक्नोलॉजी जो है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, वो फर्स्ट ईयर में आप डाल देंगे तो उससे बहुत फायदा नहीं। इसलिए सिलेबस बनाने में, मैं गोरखपुर का सिलेबस देख रहा था, मुझे अच्छा लगा। थोड़ा सा उसमें चेंजेस की जरूरत है, लेकिन मैंने उसको बहुत क्लीनली ऑब्जर्व किया है और पार्शियली आई फाइंड। दूसरी बात कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो ये बात आई कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स को भी पढ़ा जाए। आप किसी भी आईएएस लड़के को देखिए जो कम्पीट करता है, वो इंजीनियर है, लेकिन सब्जेक्ट क्या लेता है, हिस्ट्री। अपने परिवार में भी आपने देखा होगा, अगर किसी ने किया है, कि इंजीनियर लोग हिस्ट्री ले लेते हैं, इंटरनेशनल लॉ ले लेते हैं। तो ये मुझे इसलिए अच्छा लगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी कि उसका जो बेसिक कंसेप्ट यही से चेंज होगा और एक सब्जेक्ट वो ले सकता है जिसको आगे लेकर बढ़े, पढ़े और उसका कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो। इंपॉर्टेंट हमको एजुकेशन पॉलिसी। दूसरी चीज, कि अभी हमारे यहाँ जो अपॉइंटमेंट्स हुए 2-3 साल पहले, बहुत ही अच्छे अपॉइंटमेंट्स हुए बिहार में। आप क्रंच की बात तो करते हैं, हमारे यहाँ फैकल्टी का क्रंच है। इवन के आई वोंट हेसिटेट टू से कि वाइस चांसलर का भी क्रंच है। हमारे जो एसपी सिंह साहब हैं वो 4 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। तो गवर्नमेंट को आगे आना होगा। गवर्नमेंट एक प्रस्ताव देती है और चुप होकर बैठ जाती है। आपने यूजीसी का देखा, एमआरपी, मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट एकदम बंद है। हमारे जो बच्चे अभी रिसर्च में आए हैं, नए नए लड़के जो 3 साल 4 साल पहले आए, उनको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिल पा रहा है। तो गवर्नमेंट को भी बड़ी संजीदगी के साथ किसी चीज को, और ट्रांजिशन पीरियड में तो प्रॉब्लम होता ही है। ट्रांजिशन पीरियड में अभी हम गुजर रहे हैं, उसमें समय तो लगेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई चांसलर साहब ने बताया कि जो है हम कैसे अपने को तैयार, थोड़ा धैर्य रखना होगा। जो आगे के लोग हैं, जो उनकी मदद लेनी होगी, एंड वी हैव टू कोप अप विद द सिचुएशंस। इसीलिए घबराने से नहीं होगा। ट्रांजिशन में ये टाइम लगता है, और पीएचडी में सिर्फ उसी को जाना है जो रियली इंटरेस्टेड है। अदरवाइज बिहार में या किसी भी स्टेट में, मैं अभी तो बाहर रहता हूँ, नोएडा में रहता हूँ, मैंने देखा है पीएचडी का स्तर, तो उसको एक प्रॉपर रिकॉग्निशन देना होगा और कम लोगों के बीच में लानी होगी। जहां तक एग्जामिनेशन है, आपको डिपार्टमेंट में ट्रस्ट करना होगा। ट्रस्ट करके, हम जब पढ़ते थे रांची में, तो एमपी गुप्ता फिजिक्स के प्रोफेसर हुआ करते थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। वो फर्स्ट ईयर का क्लास लेते थे और उन्होंने अपने सिस्टम में क्या सुधार लाया, यूनिवर्सिटी की राय लेकर उन्होंने अपना डिपार्टमेंट में एग्जामिनेशन शुरू कर दिया। हमको भी डिपार्टमेंट वाइज ये एग्जामिनेशन ऑथोरिटी देनी होगी, और हमको विश्वास करना होगा अपने फैकल्टी पर कि वो समय के साथ, थोड़ा सा शुरू में दिक्कत होगी, लेकिन समय के साथ they will be kind enough, they will be wise enough to regulate the system in proper way। तो दो बात मुझे कहनी थी कि गवर्नमेंट को थोड़ी संजीदगी होनी पड़ेगी, अपॉइंटमेंट्स का प्रखरता लानी होगी, और रिसर्च प्रोजेक्ट को ओपन करना होगा। मैं रिटायर किया और उस समय से इमेरिटस के लिए इंतजार करता रहा। इमेरिटस बंद है, ठीक है, मेरा तो समय गुजर गया। लेकिन अभी जो नए लड़के आए हैं, उनको आप एमआरपी दीजिए, उनको इन्वॉल्व कीजिए, रिसर्च में लाइए, ताकि उनका भी समय डिपार्टमेंट में गुजरे। कितना अननेसेसरी डिपार्टमेंट में कब तक बैठेंगे। तो एक माने, और एजुकेशन का जो टेम्परामेंट होता है वो तो हर स्टेज में कोई भी आदमी एक्वायर कर सकता है, यदि आप उनको। मैं व्यक्तिगत अनुभव से मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ टीचर्स ऐसे हैं कुछ नहीं करना चाहते थे, लेकिन जब मैंने उनको प्रेरित किया, जब उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, नाउ दे हैव टोल्ड अप टू आवर एक्सपेक्टेशंस। सर, मुझे इन बातों से न्यू एजुकेशन पॉलिसी का महत्व मुझे लगता है, क्योंकि मैंने जो देखा स्वीडन में, करीब करीब इसी तरह से वहां भी वो सिस्टम काम करता है, और बड़े अच्छे ढंग से वहां के लड़के आए। तो कोविड का जो ये हम लोग जो पढ़ते थे कि फ्लड आता है तो क्या उसके फायदे हैं और क्या नुकसान है, तो फायदे कोविड का ये हुआ कि जब मैं पढ़ता था तो समझता था कि जनरल पब्लिक डीएनए के बारे में कैसे जानेगी,
एक चीज जो मुझे समझ में आई कि कोविड ने हमको समझा दिया कि डीएनए का क्या इंपॉर्टेंस है। डीएनए के इंपॉर्टेंस जानने से एक फायदा ये हो गया कि हम एक्सट्रीमिज्म से थोड़ा घटेंगे। हम जो एक्सट्रीम पीरियड में जा रहे हैं, क्योंकि हम समझ में आ गया कि हमारा जो पीरियड है, हमारा जो समझदारी है, वह एक्सट्रीमिस्ट होकर नहीं, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होकर ही हम अपने को संभाल सकते हैं, सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं सर। और रिसर्च के मामले में थोड़ा मैं कंजर्वेटिव जरूर हूं कि गवर्नमेंट को आना होगा, फंड देने होंगे, बिना फिनांस के कुछ संभव नहीं। लेकिन एजुकेशन में अभी हमको फिनेंशियल क्रंच भी है, फैकल्टी का भी प्रॉब्लम है। इन सब चीजों को गवर्नमेंट ही सॉल्व कर सकती है सर, दूसरा कौन करेगा। इसलिए गवर्नमेंट को थोड़ा उदार होना होगा, हायर एजुकेशन की तरफ आंख नी जो हो गई है थ्रू आउट द कंट्री, इसको थोड़ा उजागर करना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं, आपने इसको बहुत अच्छे ढंग से किया, थैंक यू। एक प्रश्न मेरा है, शंका प्रोफेसर एसपी सिंह साहब, कुलपति ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, जिन्होंने विस्तार से नई शिक्षा नीति के संबंध में उसको किस प्रकार क्रियान्वित किया जाए ये हमें बतलाए। पहली दिक्कत है कि बिहार के विश्वविद्यालयों में सर काम कर रहे हैं, छात्रों की कक्षा में अनुपस्थिति एक बड़ी गंभीर समस्या है और एक गंभीर चुनौती है। बहुत कम प्रतिशत छात्र कक्षा में उपस्थित हो पाते हैं। आंतरिक मूल्यांकन या जो पहलू कहा जा रहा है कि जो 30% अभी है उसको 70% कर दिया जाए, तो ये एक बड़ी कठिन प्रक्रिया। उन छात्रों को उपस्थित कर पाना, मूल्यांकन करके कक्षाओं में तो उपस्थिति का प्रतिशत काफी कम है। इस समस्या का समाधान के लिए सर क्या सुझाव देते हैं, मेरी पहली शंका ये है। दूसरी शंका है कि ओएमआर के आधार पर परीक्षा छात्रों के मूल्यांकन की पद्धति में जो बदलाव की बात हमारे यहाँ भी, मैं बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान का शिक्षक हूँ, हमारे यहाँ भी बीए पार्ट 1 ऑनर सब्सिडियरी और जनरल में इसको अभी अपनाया जा रहा है। तो इसमें जो छात्रों को ग्रेजुएशन लेवल पर कॉम्पिटेंस होना चाहिए लिखने, पढ़ने, समझने और अपने को अभिव्यक्त करने की, उसका मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। हाल के वर्षों में मैं जो लड़के नेट करके आ रहे हैं उनको देख रहा हूं और जो 10 साल पहले नेट किए थे उनको देख रहा हूं, तो उसके अंदर ऑब्जेक्टिव परीक्षा के कारण एक कठिनाई ये आई है कि जो सोशल साइंसेज में, ह्यूमैनिटीज में उनको एबिलिटी चाहिए, वो एबिलिटी छात्रों में नहीं विकसित हो पा रही। और अगर हम ओएमआर पर और ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा पर हम ओएमआर और ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा पर अगर हम स्विच कर जाएंगे तो फिर ये कठिनाई बनी रहेगी। जो कॉम्पिटेंस, सर खुद जानते हैं प्राइवेट सेक्टर में या दूसरे जगहों पर हमारे यहाँ से ऊंची डिग्रियां लिए हुए छात्र भी एम्प्लॉयबिलिटी की कितनी कठिनाई है। कहीं पर कोई छोटे पद का विज्ञापन निकलता है तो कितनी ऊंची ऊंची डिग्री लिए हुए जाते हैं, और स्टाफ सिलेक्शन जैसी छोटी परीक्षाओं में भी कितना कम प्रतिशत हमारे यहाँ के छात्र आ पाते हैं। हमारी संख्या ज्यादा है इसलिए छात्र आते हैं ऊंची परीक्षाओं में, तो हम, लेकिन एक बड़ी संख्या हो जाती है जो जिनको उपाधि तो मिल जाती है, प्रमाण पत्र तो मिल जाता है, क्योंकि हम इस धारणा के साथ परीक्षा में उदार बने रहते हैं, मूल्यांकन में उदार बने रहते हैं कि शायद सकल नामांकन अनुपात बढ़ाना है हम। तीसरी जो शंका है कि वो छात्रों के मूल्यांकन में उनके पीयर रिव्यू की बात, कि छात्रों के साथीगण उनका मूल्यांकन करेंगे, तो ये पहलू भी हमारे यहाँ की जो सामाजिक संस्कृति है उसमें शायद मुझको अव्यवहारिक प्रतीत होता है। बाकी तो इसकी जितनी अच्छी बातें बताई गई और जो कठिनाइयां हैं, तो सर को खुद मालूम है कि फंड और यानी जो वित्त की समस्या या जो शिक्षकों की कमी की समस्या और जो स्वायत्तता की समस्या, तो इसके बारे में तो सर ने बताया ही है। ये मेरी कुछ शंकाएं हैं, इसका समाधान अगर सर कुछ उपाय बता पाए व्यवहारिक तो बड़ी कृपा होगी। धन्यवाद। थैंक यू ओझा साहब। आपके प्रश्न जो है वो बहुत ही व्यवहारिक हैं, लेकिन इनका उत्तर भी उतना ही व्यवहारिक है। दिक्कत ये है कि मैं अपने 46 इयर्स के हायर एजुकेशन के एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूं और अनुभव बता रहा हूं आपको, और आपको अपने अनुभव की याद भी दिला रहा हूं।
आप हमारे सारे वरिष्ठ साथी हैं, आज भी आपको प्राइमरी स्कूल में जो अच्छा टीचर आपका था उसका भी नाम याद होगा, सेकेंडरी में जिसने अच्छा पढ़ाया वो भी नाम याद होगा, पीजी जिसने आपको पढ़ाया उसका नाम आपको याद होगा। मुझे याद है इसलिए मैं ये आपसे कह रहा हूँ और उम्मीद करता हूं कि आपको भी याद होगा। और कंट्रेरी जिसने इसका ठीक उल्टा किया उसका भी याद होगा, सभी याद होगा। ये प्रश्न बड़ा मौलिक प्रश्न है और यूजीसी लेवल पर कई बार इस पर बड़े बड़े सेमिनार, बड़े बड़े क्वेश्चनर हो चुके हैं कि लड़का क्लास में क्यों नहीं आता। ये दोनों तरफ से क्वेश्चनर इस पर हुए हैं। मैं अपने अनुभव की बात आपको बताऊंगा बाद में। दिक्कत जो आई, और कुछ साथी ऐसा करते भी हैं कि अगर 1 का क्लास हुआ तो एक 15 दिन तक आप रेगुलर टाइमिंग से क्लास में ना जाइए, कभी जाइए कभी ना जाइए। इस रूटीन को अगर आप अपना लेंगे तो आपके क्लास में एक भी बच्चा नहीं आएगा। दूसरा रूटीन कि अगर आपने कुछ ऐसा सिस्टम पढ़ाने का रखा, पेडागोजी रखी जो उचित नहीं है या पर्याप्त नहीं है, तब भी स्टूडेंट नहीं आएगा। मैंने देखा ये एमकॉम की क्लासेस की अटेंडेंस में एक टीचर पहले जाता है, उस क्लास में 60 का 60 बच्चा रहता है, बीच में दूसरा टीचर जाता है, उसके क्लास में 10 बच्चा भी नहीं रहता, कैंपस में आ जाता है, और तीसरा टीचर जाता फिर 60 का 60 वहां पहुंच जाता। यानी सब कैंपस में हैं और क्लास में नहीं जा रहे। अभी तो घर से आए नहीं आए वो अलग बात है, कैंपस में हैं और तब भी अटेंडेंस। अब इसमें किसका दोष हम बताएं? सवाल दूसरा इसी के साथ, टीचर की तरफ से जो इसके बहुत सारे रीजंस हैं वो दिए जाते हैं, विद्यार्थी की तरफ से भी कुछ रीजन आते हैं। एक्सपीरियंस के लिए नेशनल कॉलेज को जब ऑटोनॉमस किया हमने और 20% इंटरनल टेस्ट पे डाल दिया नंबर को ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में, और उनको अपना एक प्रोजेक्ट जमा करने की बात आई और 20 नंबर को 10 नंबर इंटरनल टेस्ट पर हो गया, 2 टेस्ट होंगे, 5 नंबर अटेंडेंस पे हो गया और 5 नंबर प्रोजेक्ट पर हो गया। 100% अटेंडेंस क्लास में। लखनऊ यूनिवर्सिटी में मैंने जब इसको सेमेस्टर कन्वर्ट किया और इवेल्युएशन में स्टूडेंट के लिए प्रोजेक्ट दिया तो जो अटेंडेंस थी कैंपस लड़कों से भर गया। आप रूल बना करके अटेंडेंस नहीं बना पाएंगे, क्योंकि रूल तो सब जगह एग्जिस्ट कर रहा कि 75% से कम अटेंडेंस हो तो उसे एग्जाम में नहीं बैठने देना है। 5% वाइस चांसलर रिलैक्स कर सकते हैं, 70 पर देना है। लेकिन एक कहीं से भी ये सूचना नहीं आती किसी प्राचार्य साथी से कि हमारे ये 10 स्टूडेंट हैं जिनकी अटेंडेंस 8 है। ली भी जाती नहीं ली जाती इसका भी कोई हिसाब नहीं। तो ये प्रश्न सवाल खाली ये होता अगर हम क्वालिटी दे रहे हैं। वो टीचर जिसने हमको पढ़ाया, जिसका नाम आज याद है, आप उसके लिए घर से भाग करके आते थे, छुट्टी पता है छुट्टी में पढ़ाएगा तो छुट्टी में भी आते थे और सब चीजें छोड़ करके उस क्लास में जाते थे। तो ये तो कहीं ना कहीं इसका उत्तर हम सबको अपने अंतर्मन में तलाशना होगा। और जहां तक इवेल्युएशन की बात है ओएमआर सीट पर, अब बिहार को मैंने देखा सब्सिडियरी पेपर जो होते हैं एनुअल एग्जामिनेशन में, वो सब्सिडियरी ऑनर्स भी होता और जनरल भी होता। बीए जनरल भी है और बीए ऑनर्स भी है, कॉमर्स ऑनर्स भी है, कॉमर्स जनरल भी है। पेपर दूसरे हैं, इसके पेपर दूसरे हैं, दोनों हैं। सब्सिडियरी पेपर का नंबर इम्तिहान में नहीं जुड़ता डिवीजन में, उसे केवल फेल या पास या प्रमोटेड का काम करता हो, वो नंबर नहीं जुड़ता है। जो इम्तिहान होता है छांटने का, लिखने का, पढ़ने का, तो अगर सेमेस्टर में आप लाते हैं, आधे पर्चे को आप ओएमआर पर करते हैं, आधे पर्चे को दूसरे पैटर्न पर करते हैं। एक सेमेस्टर पूरा ओएमआर पर जो मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में किया, और एक सेमेस्टर पूरा इंटायर लिखने पर। जहां हमें स्पेस मिल रहा कॉपी जांचने का, अगर आप सेमेस्टर में कन्वर्ट करेंगे दिसंबर सेमेस्टर में आपके पास स्पेस नहीं है।
2 महीने तक रिजल्ट आप नहीं देंगे तो लड़के के लिए प्रॉब्लम होगी, किस क्लास में जाए किस में नहीं जाए। और अगर इसको आपने OMR पर ले लिया तो आप 10 दिन में रिजल्ट दे देंगे और 10 दिन में काफियां जज को प्रमोट और नेक्स्ट एग्जामिनेशन में आपके पास 2 मंथ का टाइम है, 2 मंथ में आप रिजल्ट दे सकते हैं। दोनों पैटर्न को लिया उसमें। आज की तारीख में कहीं भी एडमिशन करने के लिए आप जाएं तो सारा एडमिशन OMR पर हो रहा है, यूनिवर्सिटी का एडमिशन OMR पर हो रहा है, सारा एंट्रेंस OMR पर हो रहा है, सारी सर्विसेज में OMR जा रही है। कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है क्योंकि ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। और OMR में नकल होती है, आप विकल्प लेना चाहें 4 ऑप्शन के साथ वही विकल्प ले सकते हैं, नकल नहीं होगी। उतनी कैपेसिटी अलॉट कीजिए जितनी कैपेसिटी उस कॉलेज में है। मैंने इंटायर B.Ed हमने बिहार का कंडक्ट किया और सारे सिस्टम को बदल करके कुछ ऑनलाइन सारा काम कर दिया, एक आवाज भी कहीं से नहीं आई, किसी को कोई शिकायत नहीं हुई, सारी चीजें भर गई। यानी सिस्टम को फुल प्रूफ बनाने का काम हमें ही करना है। ये उसी के साथ OMR सब्सिडियरी के साथ उसको कैसे भी नंबर दीजिए, क्या फर्क पड़ता है उसमें। उसे तो उसका नंबर केवल पास होने के लिए, प्रमोशन के लिए, वो मेरिट में नहीं काउंट हो रहा। इसलिए मतलब उन तरह की भीड़ को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो भीड़ कंट्रोल का अलग फार्मूला लेना पड़ेगा, इंडिविजुअल कंट्रोल का अलग फार्मूला होगा, सब्जेक्टिव कंट्रोल का अलग फार्मूला होगा। आपको अपने अंदर ही इन चीजों को कहीं ना कहीं लाना पड़ेगा। ये दिखाने की बात है, समझने की बात है। एक दिन में अटेंडेंस नहीं बदलेगी, लेकिन जब माउथ पब्लिसिटी होगी कि वो टीचर आज क्लास में इतना पढ़ा गए, तो दूसरे साथी भी आएंगे, तीसरे भी आएंगे, चौथे भी आएंगे, सभी आएंगे। अब कोई बीमार हो तो बिल्कुल नहीं आएगा, आना भी नहीं चाहिए उसे, उसको छोड़िए। तो 90% 80% स्टूडेंट आपके पास आएगा, और जो 20 नहीं आ रहा वो नेक्स्ट डे आएगा या वो नेक्स्ट डे दूसरा 10% एब्सेंट हो जाए कंटिन्यूटी में। मैंने आपकी अटेंडेंस परफेक्ट अटेंडेंस होगी। हमने करके देखा, कॉलेज में भी देखा, यूनिवर्सिटी में भी देखा। यहाँ भी जहाँ PG के डिपार्टमेंट में पढ़ाई होती सारा बच्चा आता है, UG तो कॉलेजेस में है, इसलिए उसकी आपने सिस्टम ही वो नहीं रखा है ना। सिस्टम होता तो आता, उसको लाने के लिए कानून नहीं लाएगा। कानून तो बहुत पहले से बना हुआ 75% अटेंडेंस का, उससे आना होता तो हम सब आ गए होते। कानून नहीं लाएगा, लाने का काम कोई कर सकता है। तो हमारी टीचिंग पेडागोजी, हमारा टीचिंग पैटर्न, हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न, हमारा सबमिसिव पैटर्न, हमारे जो अदर एक्टिविटीज हैं उसके साथ वो जुड़ना, जो इसको को करिकुलर एक्टिविटीज आप कहते हैं, उसके साथ वो जुड़ने की कोशिश करेगा और जुड़ेगा। वो तो एडमिशन ही इसीलिए लिया कि आपके पास आए। एक टीचर की क्लास में अगर 100 बच्चे हैं उस सब्जेक्ट में, 8 बजे उसकी क्लास है, तो 200 आंखें उसी की तलाश के लिए उस दिन क्लास में आई, उसी टीचर को ढूंढ रही। वो टीचर गायब होता, 200 आंखें निराश होंगी, तो 100 व्यक्ति निराश होगा। आने के लिए उन लोगों ने क्या किया, घर से चले होंगे, नाश्ता किया, नाश्ता छोड़ा, नहाया नहीं नहाया, कपड़े बदले, जैसे भी उन्हें तैयार होना था तैयार हुए, भागते दौड़ते, पैसा खर्च करके। कोई भी कन्वेंस लेगा तो उस कन्वेंस में पैसा खर्च होगा, अपनी जेब का पैसा भी खर्च किया और आया, और यहाँ अनुपस्थिति अगर है तो 200 आंखें निराश होकर के गई, तो क्या पब्लिसिटी देंगी। अगले दिन वो 400 आंखें होंगी, क्या पब्लिसिटी हमें देंगी। ये प्रश्न कहीं हमारे लिए है कि हम उस 100 आंखों को, 200 आंखों को फेस करने के लिए तैयार हैं या नहीं। जो हमें देखने के लिए आए हैं उनके साथ हम आंख मिलाने के लिए तैयार हैं, नहीं तैयार। उनको जो कुक्ड फूड चाहिए वो हम दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे। जो स्पीच ऑफ थॉट देना है, लेसन देना, वो हम दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे। हम उतना प्रिपेयर होकर के आए कि नहीं आए। बेसिकली बहुत बदलाव आ गया है। आज का स्टूडेंट टेक्नो सेवी हो गया है। जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उसको वो नेट पे देख के आया, और उसे ये लगेगा कि जो हमने वहां पढ़ लिया था, जो यहाँ कंपोनेंट दिया जा रहा है, वो कुछ भी हमें नहीं इनरिच कर रहा है, तो 10 दिन बाद आएगा ही नहीं। आप भी हमारे साथी हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हैं, हो सकता है 2-4 टीचरों का क्लास आपने भी ना अटेंड किया, तो पढ़ाने दो। ऐसा होता रहा, हर युग में हुआ, हमने भी नहीं किया। तो ये हर युग में होता रहा, बशर्ते इसके बदलाव की जो जरूरत है वो कहीं ना कहीं से क्रिएट करनी होगी और लानी पड़ेगी। एक छोटा सा जिज्ञासा था सर। मैं के साहू, महिला विश्वविद्यालय में ही सर के अंडर में मैं काम कर रहा हूँ। सर के मैनेजमेंट क्वालिटी से मैं बहुत ही प्रभावित हूँ।
और कई मायने में मिथिला विश्वविद्यालय ने नया रूप दिया है सर के देखरेख में, और भविष्य उनको दिखाई पड़ने भी लगा है कि जो सर का समय है मिथिला तो काफ़ी कर रहे हैं। और आज इन सर ने जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ओवरऑल आइडिया दिया, ब्रीफ में दिया और बड़ी गहराई से सारे कंपोनेंट को दिया, इसके लिए मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैंने कई पढ़ाई किया है, कई वर्कशॉप किया हुआ है, लेकिन जो क्लैरिटी के साथ आपने सारे पक्ष को दिखा है वो हमारे लिए बहुत नया चीज़ है सर। मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा है सर, वो ये है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एज रिलेटेड कहीं कमेंट्स नहीं मिल पा रहे हैं, जैसे कि प्राइमरी में या तरह तरह के जो लेवल बनाए गए हैं उसमें एज रेस्ट्रिक्शन किया है कि नहीं। सिमिलरली हायर एजुकेशन में एंट्री है, एग्जिट और एंट्री दोनों प्रोविजन है। एंट्री के लिए क्या बैकग्राउंड में एज लिमिट या प्रोफेशनल बैकग्राउंड या एलिजिबिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट के लिए कुछ चर्चा है कि नहीं, या फिर विश्वविद्यालय को इस पर पॉलिसी अडॉप्ट करना पड़ेगा एंट्री लेवल पे। जैसे से फॉर एग्जांपल कि हम बॉटनी से हम रिटायर करने जा रहे हैं, हमारी इच्छा हो रही है सोशियोलॉजी पढ़ने के लिए, तो क्या मैं ग्रेजुएशन लेवल पे या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर सोशियोलॉजी में दोबारा पढ़ सकता हूँ कि नहीं। इस तरह की एलिजिबिलिटी की बातें आती है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये जो प्रोफेशनलिज्म है, इनोवेटिव्स है और इस तरह की चीजें को इनकॉर्पोरेट करने जा रहा है, तो ऐसे टैलेंट जो आपने कहा सर बहुत अच्छे शब्दों में कि एक सिद्धार्थ को और बुद्ध बनाने के लिए संस्था बनी हुई है, ऐसे ऐसे लोगों को कोई प्रोविजन होना चाहिए या इस पर क्या सोचा जा रहा है? उत्तर देना है साहू साहब? साहू साहब, आपकी बात समाप्त हो गई तो मैं अपनी बात कह दूं। जी सर मेरी बात हो गई सर। आप देखिए, ऐसा था कि जो एज की बात प्राइमरी स्कूल के लेवल पर थी, पहले की पॉलिसी में वो 6 साल की उम्र में 5 साल से ज्यादा बच्चा स्कूल जाता था। 5 साल से कम वाले बच्चे को स्कूल वाले नहीं लेते थे और वो सीधे 1 में 1 से स्टार्ट करता था। हम भी उसी तरह से पढ़े हुए हैं, सीधे फर्स्ट में गए थे, कोई प्रिपरेटरी क्लास कोई क्लास नहीं थी, सीधे 1 में गए थे। तो 5 साल की उम्र में बच्चा गया तो 20 साल में उसने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, ऑलमोस्ट 4 साल की उम्र से जाता था। अब ये जो 3 साल प्ले ग्रुप का है, ये परफेक्ट ये उम्मीद करके जा रहा कि 3 साल की उम्र का बच्चा स्कूल में जाएगा और वो 3 साल अगले खेलेगा, उन्हें 6 साल तक 3 साल का बच्चा गया और 3 तक वो केवल खेलेगा, पेंटिंग करेगा, ड्राइंग करेगा, जो मन कहे सो करेगा। उसका केवल ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा ग्रुप में, उसको टीचर देखेंगे और कुछ जो मन कहेगा सो वो करेगा। और वहां से जब +2 लेगा वो 3+2 5 साल के एजुकेशन में, तो वो +2 में 1 और 2 में एग्जाम नहीं होंगे। तो एक एज यहाँ डिफाइन की गई और हायर एजुकेशन में पहले भी एज नहीं थी कोई। कंटिन्यूटी के साथ ये यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम है, कॉलेज की प्रॉब्लम है कि कंटिन्यूटी के साथ ये रूल्स फ्रेम यूनिवर्सिटी करता रहा कि हम जो डायरेक्ट आ रहे हैं उनको लेंगे या 1 ईयर गैप का कितना परसेंटेज रिड्यूस करेंगे, 2 ईयर गैप का कितना रिड्यूस करेंगे, उस मेरिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये आएगा। तो ये फार्मूला तो यूनिवर्सिटी को लेना पड़ेगा कि भाई कितनी डिमांड स्टूडेंट की उनके लिए, डिमांड रेशियो क्या है कोर्स वाइज। अब मान लीजिए 50 ही फार्म है और 60 सीटें हैं, तो तय आपको करना है, सबका एडमिशन होना है। जो आपको फीस जमा करे वो एडमिट हो गया। लेकिन अगर 60 सीटें हैं और 500 एप्लीकेशन है, तो कोई ना कोई फार्मूला तो यूनिवर्सिटी को मेरिट को प्रेफर करके लाना पड़ेगा और मेरिट बनाने का कोई तरीका यूनिवर्सिटी को बनाना पड़ेगा, क्योंकि 500 एप्लीकेशन में से 60 किसको देंगे आप एडमिशन, ये कोई क्राइटेरिया आपको बनाना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट क्राइटेरिया आपको बनाना। और जहां तक किसी के पढ़ने की बात है, किसी कोर्स के पढ़ने की बात है, तो राष्ट्रीय स्तर पर इग्नू है, उसके लिए कोई रोक नहीं है, उसकी डिग्री की मान्यता वैलिडिटी उतनी ही है और हर स्टेट में एक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी है। किसी उम्र का आदमी, किसी भी सेवावृत्त का एज नहीं, 70 साल का भी, 80 साल का भी, जिसका भी मन के वहां रजिस्टर्ड हो सकता है। ये दोनों व्यवस्थाएं पढ़ने के लिए, कहीं रोक नहीं है अभी किसी व्यवस्था में, वो व्यवस्था इस एनईपी में भी लागू रहेगी। पढ़ाने का पैटर्न उनका बदलेगा, लेकिन वो सिस्टम उनका, एडमिनिस्ट्रेशन उनकी चीजें आज की तारीख में भी बनी रहेंगी। वो इग्नू का भी बना हुआ और हर स्टेट में, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी बिहार में है, उसका भी बना हुआ, ऐसे हर स्टेट में ओपन यूनिवर्सिटी एक्ट से बनी हुई है, वो बनाना जरूरी था। तो ये तीनों बातें अपने आप में कुल मिला करके जो भी प्रॉब्लम है,
फिर मैं अपनी बात दोहराना चाहूँगा, वो यूनिवर्सिटी लेवल पर अगर है तो यूनिवर्सिटी को ठीक करना आगे आकर के, कॉलेज लेवल पर है तो कॉलेज को ठीक करना है। ये जो नियुक्तियों में थोड़ा मोड़ा विलम्ब होता है, इस विलम्ब को सरकार चाहे तो थोड़ा घटा सकती है, इस विलम्ब को ला सकती है, दूर कर सकती है। अब जैसी भी व्यवस्था होगी, मेरे ख्याल में हर जगह तेजी के साथ काम हो रहा है। जो भी दिक्कतें जिसकी हैं उसको कहीं रिजॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें वेटिंग टाइम नहीं है। अगर आप एनईपी को लागू करना चाहते हैं या लागू कर रहे हैं तो टाइम किल नहीं करना है। यहाँ तो टाइम किल करेंगे तो आप फिर बाउंस बैक हो जाएंगे। आपको जिस स्पीड से एजुकेशन पॉलिसी चलना चाहती है, जिस एक्यूरेसी के साथ चलना चाहती है, उस स्पीड और उस एक्यूरेसी को लेना पड़ेगा। तभी आपकी स्पीड पब्लिक से मैच करेगी, नेशनल लेवल से मैच करेगी, अदर इंस्टीट्यूशन से मैच करेगी। अब जैसे देखिए, एक बंदिश हम सब के साथ है कि जो यूजी का बच्चा हम निकालते हैं वो हिंदुस्तान भर के किसी यूनिवर्सिटी में पीजी में एडमिशन लेते हैं, और हर यूनिवर्सिटी अपने रिजल्ट के साथ अपने एडमिशन को रेगुलेट करती है। तो सपोज कीजिए बिहार है और बिहार में यूजी का रिजल्ट अभी आउट नहीं हुआ और पीजी के एडमिशन दिल्ली में और दूसरे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में हो रहे हैं, तो हमारा बच्चा तो उसमें पार्टिसिपेट भी नहीं करेगा। तो हमें मजबूरन अपने स्टूडेंट के इंटरेस्ट में उस स्पीड के साथ मैच करना होगा। हम चल पा रहे नहीं चल पा रहे अलग बात है, लेकिन हमको नैतिकता के साथ भी चलना चाहिए, अपनी लाइबिलिटी के साथ भी चलना चाहिए, अपनी ड्यूटी के साथ भी चलना चाहिए। बाई फोर्स चलना होगा हमें, लेकिन अब इस पर कंट्रोल, यही ऑटोनॉमी हमारी, हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं है, ये ऑटोनॉमी हमारी है। तो बेसिकली इस स्पीड को पकड़ने का काम, उसकी एक्यूरेसी का काम, अपने स्टूडेंट के रिजल्ट के लिए, अपने स्टूडेंट के भाग्य के लिए, उसके आउटकम के लिए हमें आगे आना होगा, बदलाव बदलना पड़ेगा। तो ये पहले भी हम करते रहे, आज भी हम करेंगे। जो बदलाव इसमें नॉमेनक्लेचर का ही बदलाव समझिए, जो कंटेंट है उस कंटेंट को ट्रू सेंस में, जैसा अभी कहा प्रसाद ने कि सब्जेक्ट को लेना पड़ेगा, यानी ये सिलेबस बनाना केवल बांटने का काम नहीं होगा, उसकी वैल्यू ओरिएंटेड आपको देखना पड़ेगा कि जो फर्स्ट ईयर का सर्टिफिकेट है वो उतनी वैल्यू के साथ आउट हो रहा है, नहीं आउट हो रहा, जितनी वैल्यू हमारे सब्जेक्ट की रिक्वायर्ड है एक सर्टिफिकेट के लिए। डिप्लोमा भी उतने वैल्यू के साथ वो निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, हमें देखना होगा। पहले हम 3 साल में देखते थे कि जो वैल्यू चाहिए वो वैल्यू हम सब्जेक्ट की दे करके 3 साल में निकाल पा रहे, नहीं निकाल पा रहे। अब 2 साल पहले भी उसे निकालना है, तो जो वैल्यू थर्ड ईयर में देख के निकालते थे, उस इंटीग्रेटेड वैल्यू को डिसइंटीग्रेट करना होगा और छोटे छोटे टुकड़ों में उस वैल्यूज को बनना, कि वो ये ना कहे हमने इतना तो पढ़ा, आगे तुम जानते भी नहीं, आगे पढ़ेंगे तब जानेंगे, उसे कुछ भी ना मिले, जीरो लेकर के जाए। अगर एग्जिट पॉइंट उसका, यूजुअली कोई एग्जिट नहीं करेगा है, लेकिन अगर किन्हीं परिस्थितियों में एग्जिट करता है तो एग्जिट का ऑप्शन रहना चाहिए। जी सर। मैं प्रोफेसर डॉक्टर यूके वर्मा, पटना जीडी मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। मेरा बहुत साधारण सा प्रश्न है, और ये जो आज का जो वार्तालाप हुआ है, जो डिस्कशन हुआ है, बहुत ही वैल्यूएबल है, और मैं इसका तहे दिल से सम्मान करता हूँ, और आगे ऐसा चले इसके लिए बहुत अच्छी बात है। मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि अभी तक जो पैटर्न, जो माइंडसेट सभी स्टूडेंट्स में है कि 12th के बाद अगर इंजीनियरिंग में जाना है तो उसकी एलिजिबिलिटी सब्जेक्ट्स ये होगी, अगर डॉक्टर बनना है तो उसकी एलिजिबिलिटी सब्जेक्ट्स ये होगी। तो क्या ये पैटर्न भी चेंज होगा कि किसको किस प्रोफेशनल कोर्स के लिए क्या, क्योंकि अभी तो ओपन हो गया, कोई भी आदमी कोई सब्जेक्ट, जैसे बहुत अच्छी बात बताई थी कि फिजिक्स के साथ म्यूजिक, अब एक फिजिक्स लिया, कोई म्यूजिक ले रहा है, साथ में हिस्ट्री भी ले रहा है, साथ में ज्योग्राफी भी ले रहा है। अब ये जो व्यक्ति है, ये जो स्टूडेंट है, वो कैसे अगर इंजीनियरिंग और मेडिकल में एडमिशन लेगा? प्रश्न सबके सामने थे डॉक्टर साहब, जब ये पॉलिसी सर। बन रही थी तब भी जो चिंतन इसके हुए, क्योंकि इसके बनने के बाद हमने 6 वर्कशॉप यूनिवर्सिटी में कराई थी, जिस पर ये पब्लिक ओपिनियन लेने की बात थी। तब तक ये ड्राफ्ट ही था, बिल फाइनलाइज नहीं हुआ था। 6 वर्कशॉप कराई थी मैंने, और डिफरेंट बॉडीज के लोगों को बुला कराई थी। तो ये जो कॉलेज में भी मैंने कराई थी, सीबीसीएस लागू करना था तो कॉलेज में भी 7 दिन का वर्कशॉप कराया, सब लोगों को बुलाया और एक अच्छा सा किया काम। ये प्रश्न अभी अनुत्तरित है, क्योंकि जब ये आप लेकर के इनको आएंगे, वहां से कैरी करेंगे। मैंने कहा अभी जो 4 साल वाला +4 वाला है, 9, 10, 11, 12, ये वहीं से बदल करके आ रहा, तो अभी वहां तक की यात्रा कर ही नहीं पाए ये, यानी अभी ये यात्रा हो नहीं पाई। यस सर। तो आज जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट नहीं बदलेगा, ये फॉर्मेट यही चलेगा, लेकिन आने वाले समय में जब वो ग्रुप आएगा आपके पास तो ये फॉर्मेट बदलेगा।
आज तो इसी फॉर्मेट पे पढ़ करके बच्चा आया है। आप चेंज करेंगे आज की तारीख में तो उसको असुविधा होगी। वो तो बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाए। बात वही आई ना। तो अभी जो हमारे साथ आ रहा है वो इस आगे भविष्य में तो निश्चित रूप से जब वो हमारा वो लाट आएगा 9th 10th 11th 12th का, जो फ्रीडम लेकर के आ रहा, विदाउट फैकल्टी आ रहा, यस सर। वो तो विदाउट फैकल्टी आ रहा, विदाउट डिसिप्लिन आ रहा है। और ग्रेजुएशन भी उसी डिसिप्लिन में हो रहा है कि उसमें साइंस आर्ट कॉमर्स हम नहीं दे रहे हैं, डिसिप्लिन खत्म। यस, इसका जब मतलब ये बेस से ही चेंज होगा, मतलब राइट फ्रॉम बिगिनिंग 3 इयर्स से शुरू हो जाएगा ये कहानी। जब वो लाट आएगा तब जाकर के इस चेंज की तभी इस होगा। कॉम्बिनेशन में कोई इम्पैक्ट आएगा। हाँ, यही कंफ्यूजन था मुझे कि ये क्या कोई इसका प्लान है, टाइम है, कितने समय के बाद ये लागू हो जाएगा या नहीं होगा। ये क्लियर हुआ जो जब ये पैटर्न लागू होगा तभी ये आगे फॉलो होगा। मेरे ख्याल में जब ये इनपुट आएगा, इस पे चिंतन हो रहा है, जो इनपुट जी। आएगा तभी उसी हिसाब से अकॉर्डिंगली आउटपुट क्रिएट करेंगे, ये तभी होगा। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और ये कोर्स में सबसे अच्छी बात यही है कि ये अक्सर होता है ग्रेजुएशन लेवल पे, कोई फर्स्ट ईयर करके छोड़ देता है, कोई सेकंड ईयर, उनका कोई वजूद नहीं रहता है। अब सबका वजूद एस्टैब्लिश हो जाएगा। अब ये शून्य होता है 3 साल पढ़ने के बाद अगर यस एग्जाम सर, नहीं यस दिया यस सर, तो 1 2 बहुत 3 अच्छा की है। मार्कशीट सब बेकार थी, उसके लिए कुछ नहीं था। लेकिन और इसको हमें ऐसा ही प्रोफेशनल कोर्स में भी होना चाहिए कि वो इंजीनियरिंग में प्रोफेशनल फर्स्ट ईयर पढ़ा, हाँ, जो डॉक्टर बनना वो भी। आप चाहते तो आगे जरूर होगा, ये ऐसा होगा कुछ जी नहीं, जी जी, क्योंकि ठीक वो भी सर, निकल करके थैंक जाए उस तरह से। यू सर, थैंक यू। डॉक्टर रुचि। Yes, Professor Manoj sir, Manoj Kumar sir. So you Yeah. want to add anything? या एक्चुअली सर ने तो बहुत अच्छे ढंग से पूरी बातों को बताया, लेकिन कुछ इसमें इसका जो एक सारगर्भिक चीज है कि मैं आउटकम बेस्ड एजुकेशन, जैसा सर ने बताया, शेंग सर ने, कि आउटकम बेस्ड एजुकेशन पॉलिसी से न्यू एजुकेशन पॉलिसी में डालना है, और प्रयासरत सभी पॉलिसी मेकर्स कर रहे हैं, खासकर नाइक की टीम और हमारी मिनिस्ट्री भी कर रही है। उसके लिए हमें आईपीएससी सिस्टम को, हमारे कॉलेजेज और यूनिवर्सिटीज के आईपीएससी सेल को इसमें आगे आना होगा, और उसमें प्रोग्राम एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स, प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स, कोर्स करिकुलम, इनको पहले सुदृढ़ करना होगा, जैसा कि सर भी बता रहे थे। और हमें जैसा कह रहे थे कि अटेंडेंस के लिए शिक्षक को भी आगे आना होगा, हमें खुद को आगे आना होगा कि हम कैसे उसको उपस्थिति को बढ़ाते हैं, और उनको किस ढंग से, इंटरेस्टिंग ढंग से बच्चों को हम परोसते हैं उस कोर्स को या सब्जेक्ट मटेरियल को। और अगर आप इंटरेस्टिंग वे में देते हैं तो खुद ब खुद बच्चे आकर्षित होते ही हैं और आते ही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। खासकर हमें जब और ये बात डिपेंड करती है इस पर भी कि हमारा जो एनईपी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बढ़ाने का, जो 2035 तक 2035 तक बढ़ाने की बात हो रही है। ये सबसे बड़ी बात है, हमारा ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो घटता जा रहा है हायर एजुकेशन में। ड्रॉप आउट की संख्या स्कूल एजुकेशन में भी बढ़ता जा रहा है, और ये जो पद्धति है 5+3+3 का जो पद्धति, और जो हमारा सर्टिफिकेट कोर्स और डिप्लोमा कोर्स, जैसा सर ने बताया कि डिप्लोमा कोर्स, तो उसमें लर्निंग स्पेसिफिक कोर्सेस का एक डिफिनेशन दिया हुआ है एनईपी डॉक्यूमेंट में कि कितने लर्निंग स्पेसिफिक डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्सेस होने चाहिए, या एक रेंज दिया है। रेंज को देखकर हम उसको कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चे कैसे समझेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट हमारा जैसे फिजिक्स का है, साथ में मुझे ट्राइबल स्टडीज भी पढ़ना है, या फिर और भी कई कोर्स मैं ले लेता हूँ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में, या एनपीटीईएल में, या स्वयं में, मुक्स में। लेकिन हमें इसके लिए
स्कूल या कॉलेज या हायर इंस्टीट्यूशंस में एक मेंटरिंग सिस्टम को भी स्ट्रेंथन करना होगा। हमें मेंटर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना होगा। हालांकि यूजीसी बहुत पहले से करती आ रही है मेंटरिंग पॉलिसी बनाने के लिए, उसने रेगुलेशन भी दिया है, लेकिन हमें इसको सुदृढ़ करना होगा ताकि हर बच्चे के लिए एक मेंटर, एक शिक्षक एक मेंटर की तरह काम करे और उससे गाइडेंस की तरह करे। और ये नई शिक्षा पद्धति में, ये पॉलिसी में ये प्रावधान भी दिया गया है, इसका प्रावधान किया गया है मेंटरिंग का। और समग्र विकास के लिए इसमें बहुत ही अच्छे ढंग से इसमें, हालांकि जो डॉक्यूमेंट पेपर है 70-80 पेज का, ये एक डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि एक हमारे लिए रामायण गीता की तरह है। हर वाक्य, हर शब्द, इसका एक एक शब्द हमारे लिए सारगर्भित रखता है और उसका एक मतलब रखता है। जितने भी उसकी चर्चा की जाए हमारे लिए कम है। और उसमें जैसा कि सर ने बताया, सिंह सर ने, और चूंकि सर बहुत पहले से इसमें इन्वॉल्व भी रहे हैं, रथ साहब बहुत पहले से इन्वॉल्व रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये आगे के लिए हमारे लिए बहुत ही कुछ बातों को हमें ध्यान देना होगा अभी प्राइमरी लेवल पर भी इसको आगे बढ़ाने के लिए, ताकि हम कदम से कदम मिलाकर सरकार की नीतियों के साथ चल सके। अदरवाइज फिर हम पीछे हो जाएंगे। और जिस तेजी से हमारा सिस्टम चेंज हो रहा है, हमारे शिक्षा प्रणाली चेंज हो रही है और इसकी जरूरत है अभी, उसके कदम ताल को मिलाकर करके चलना ही होगा, उसके सिवाय कोई विकल्प है नहीं। बस मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ। हाँ, डॉक्टर रुचि। मनोज सर, सर आपने अपनी बात कह ली? मनोज सर? हाँ, ओके। कोई और है जो एनईपी से रिलेटेड अपनी बातों को रखना चाहता है आज के इस प्रोग्राम के जरिए? कोई भी प्रोफेसर, वाइस चांसलर, कोई भी एकेडमिशियन जो एनईपी 2020 के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? और कोई या तो कोई प्रश्न हो? मेरे ख्याल से कोई प्रश्न नहीं है, तो इस कार्यक्रम को आगे लेते हुए डॉक्टर नीलेश, आई थिंक डॉक्टर नीलेश इज हियर। डॉक्टर नीलेश सर, just to propose the formal vote of thanks. So we are the end of the program. तो आई इनवाइट डॉक्टर नीलेश। जी मैडम, आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है, आप सर बोलिए सर। तो भाई इसी के साथ हम आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर एसपी सिंह सर, जो कि वाइस चांसलर हैं एल.एन. मिश्रा यूनिवर्सिटी के, और इनके पास और दो अतिरिक्त यूनिवर्सिटी का कार्यभार भी रहा है। मैं इनको बहुत पहले से भी जानता हूँ, लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी वाइस चांसलर रहे हैं। उन्होंने अनेक कदम उठाए हैं ताकि एकेडमिशियंस और विशेषकर छात्रों का असली में जो सुगम बोलते हैं हम लोग, ताकि क्वालिटी एश्योरेंस किया जा सके, उसके लिए इन्होंने कई कदम भी उठाए, आज इन्होंने बताए भी। और साथ ही साथ प्रोफेसर मनोज कुमार सर का भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला आज के इस कार्यक्रम के लिए। और इसके साथ साथ मैं अपने नायब डायरेक्टर प्रोफेसर एस.सी. शर्मा सर का भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनकी छत्र छाया में हम लोग अनेक ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं और आगे भी करेंगे। हमने राज्य के अनुसार ये कार्यक्रम कर रहे हैं नीति के तहत। और मैं साथ साथ अपने नायक एडवाइजर प्रोफेसर अमिया कुमार रथ सर, वी.एस. पोंडमोडी दास जी का, जो कि एडवाइजर है नायक के, और असिस्टेंट एडवाइजर डॉक्टर रुचि त्रिपाठी जी का भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना अमूल्य योगदान ने दिया। उसके साथ साथ जो हमारे पार्टिसिपेंट रहे, जो कि वाइस चांसलर रहे, प्रोफेसर और प्रिंसिपल जो कि बिहार हायर एजुकेशन से आते हैं, उन्होंने भी अपना ये महत्वपूर्ण समय दिया इस कार्यक्रम के लिए। मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं आप सबसे पुनः गुजारिश करना चाहूंगा कि आगे भी हम ऐसा कार्यक्रम करेंगे, तो आपका हमें सहयोग चाहिएगा। इस टाइप के कार्यक्रम को संपन्न और सफल बनाने के लिए आपका योगदान चाहिएगा। मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देता हूं और इसी के साथ हम इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर, सभी को प्रणाम। प्रणाम एसपी सिंह सर।
नमस्कार सर। सभी को धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर।